वैसे आपको कराची कैसा लगता है as a city? Yeah, Karachi is Especially after living in Toronto and going back. Karachi is, for me personally, अगर मैं अपना honest opinion दूँ, it's not a livable city for your mental health. It's not. ठीक है, जो मुझे यहाँ की आदत हो गई है ना कि अब कराची में I'm always like under not pressure but कि अच्छा मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा वॉलेट कहाँ है, ये प्रेशर वो प्रेशर, अभी कोई आएगा ये बाइक वाला का, अच्छा मेरा फ़ोन चोरी हो चुका है बहुत दफ़ा अच्छा, okay. कराची में। और मेरे उस टाइम पे ना पैसे होते थे, मेरे पास ब्लैकबेरी था, बहुत मैंने जुनाद ईदियाँ सबसे मांग के इधर उधर पैसे जमा करके मैंने ब्लैकबेरी लिया और ब्लैकबेरी चोरी हो गया। तो दैट जॉब even though I did for 6 months, उसने मुझे बहुत सिखाया। I was at a very junior position and then I saw कि कराची का जो corporate ladder है it is very difficult. It is very difficult कि I didn't understand कि at that point कि ये इसकी growth क्या है। So I wasn't even looking towards कितना it. टाइम लग जाएगा, क्या trajectory क्या है, टाइम लगेगा, क्या करना पड़ेगा, इस एजेंसी का भी इतना बड़ा स्कोप नहीं लग रहा मुझे, इनके ग्रोथ मुझे इतनी लग रही, they were doing a loss anyway. So eventually मैंने कहा कि चलो I have to leave anyway, तो मैंने एजेंसी छोड़ दी। I was just doing freelance clients क्योंकि वो उसमें at that time I learned how to pitch clients, how to manage their digital presence, so वो सब मैंने सीख लिया। तो वहाँ से मार्केटिंग का शौक पैदा हो गया। अभी आपने मेंशन किया कि जब आप जाते हो तो आपके दोस्त पूछ रहे होते हैं कि यार कनाडा कैसे आना है, बाहर कैसे जाना है। Do you really think life in Canada is easier than life in Pakistan, given the fact that everything here is so expensive now? Yeah, it's a mix, ठीक है। I know people जो पाकिस्तान से यहाँ आके they're regretting their decision, they are suffering and they are people who are thriving. So it all depends कि आपने क्या किया आगे। अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर टोरंटो क्यों सेटल हो गए भाई? Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of the Kanani Connection. Today we have Mustafa Ansari with us. Born and brought up in Karachi, currently in Canada, director of marketing, content creator, does a lot of community work. तो हम मुस्तफ़ा साथ पूछेंगे कि इतनी सारी चीज़ें कैसे कर रहा है। एंड या लेट्स डाइव राइट इनटू इट। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। पहले तो हाथ मिला। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग यार, इतने बड़े आदमी आज आपने टाइम दिया है। थैंक यू वेरी मच। या तो चलो विल स्टार्ट विथ योर अर्ली लाइफ, ठीक है? तो वेयर वर यू बोर्न, स्कूलिंग, कॉलेज, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। सही है? For sure. So born in Karachi, went to the city school, famous city school. कौन सा कैंपस? The Raksha campus. DK. DK boy. I have a lot of friends from there. Yeah. A levels के लिए went to South Shore, उसके बाद another famous place. Okay. It's not there anymore, I heard recently. Is it not? South Shore A levels over. Yeah, it closed down. Okay. That's all the faculty left. So South Shore से A levels किया. At that time, a lot of my friends they went overseas, but I did my bachelor's in business from Zabist. And Zabist actually, it doesn't have the best of reputation, but जो Zabist ने सिखाया है ना मुझे, वो कनाडा में सबसे ज़्यादा काम आया। अच्छा। Because Zabist was all about shortcuts, lack of resources में कितना output आ सकता है, किधर से मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। ये जो एक कराची slang में जो word है जुगाड़। Yeah, that I literally learned the extent of it from Zabist. सही। Or Zabist में there was a lot of student politics. I was part of it. Like politics as in a good way or a bad way? Good way in a sense that you learn a lot. Bad way that everybody's trying to bring you down. But it's also a learning curve. I mean, it's Zabist Shahid Zulfikar Ali Bhutto People's Party for a reason. Yeah. और वही सबसे ज़्यादा सिखाया। Business तो बहुत ही कम सिखाया, वो ज़्यादा सिखाया। So I was, president of this Rotary chapter in Zabist. वहाँ से बहुत conflict with the council and all that. A lot of learning over there. वो सब हो गया. At that time, my family got immigration to Canada, 2015 में. But I was like, let me finish my bachelor's. And उसके बाद, so once that finished, I worked a little in Karachi, not that much, just 6 months in an agency. और उसके बाद I got admission to masters. I was like, अभी masters नहीं किया तो बाद में तो बिल्कुल नहीं होगा. And I was like, I have the residency as well, so I do want to move to Canada. चलो हम थोड़ा इसको dissect करते हैं कराची लाइफ को. So you said city school. तो city school direct from pre-nursery to A levels. Yeah. ठीक है. And so all boys campus था I think. Yeah. How is that? All boys campus कैसा होता है? Once you get very comfortable with an all boys class, because you went to Zabist after, which is obviously a co-ed university, right? So how is the city school के बाद I went to South Shore.
And South Shore में like the first few months it was very different scenario. इतना confidence भी नहीं था सबसे बात करने का. Usually आदत थी सब boys की, but eventually you got used to it and but it was wild because you know सब एक दूसरे को गालियाँ देते रहते थे पूरा दिन. सही है. So many fights all the time. Nobody was as serious in studying, but सबके grade पे भी हमेशा अच्छे आते थे. Everybody was super smart. How were you as a student? I was okay. I wasn't the best at that time. I was you know just good enough कि you know B आ जाए तो बहुत है. Would you mind sharing your O-level grades? So O-level, या A-level जो भी याद हो. A-level का तो I don't want to share. South Shore में थे. Yeah, South Shore में भी था. So O-level में I did get 1 A. 2-3 B's थे and बाकी I think 2-3 C's थे. A-levels में I got a B and I think B, C, and I think then I got a D or something. So do you, on a personal level, do you think grades reflect intelligence in the real world? So I'll give you an example. When I applied for Queen's University, ठीक है, अब मैं जब South Shore में था, so at that time I heard a lot about you know people applying to Queen's, Ryerson, TMU, U of T, York University, but Queen's was always regarded as a very difficult university to get into, and it's an experience because it's also in Kingston, it's not in Toronto. Some U of T वगैरह आते थे. At that time, I didn't pay that much attention. Fast forward, Zabis से graduate हुआ. Zabis में भी the marks were not the best, but extracurricular हमेशा से strong था. South Shore में cricket team में था, sports का काफ़ी वो था. वहाँ पे जो है student curricular activities बहुत strong था. So when I applied to Queen's, they're like, ठीक है, your grades are you know good enough. Like we don't really care that much about it. How you are as a person in interacting with people, that will tell us how you are in customer service, how you are in decision making वगैरह. That is something that we are more focused on. Okay. So जब मुझे admission मिला ना masters का, I was shocked myself कि मेरे grades were not the best, and Queens में you know everybody was coming in with a high grade, but they're like your extracurricular activities, they kind of you know make up for it. And वही बात है कि फिर इंटेलिजेंस जो है आप यहाँ लगा ले या वहाँ लगा ले, एंड रिजल्ट में यू गेट टू द सेम प्लेस. बट डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ बैलेंस कि आप पढ़ो भी और साथ में सो ये भी करो? आई थिंक कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है. यू डोंट वांट टू बी कि मेरे सब ए स्टार्स हैं पर मेरी नो सोशल वो नहीं है, यहाँ पे मेरे सब जो है यूज हैं पे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग. इट शुड बी लाइक बैलेंस, एंड आई थिंक आई वाज बैलेंस्ड कि मेरे बी सीज थे, एक डी था, और बाकी यहाँ पे भी आई वाज प्रीटी स्ट्रॉन्ग. सो लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे एडवाइस लेने आता है, यंगर ब्रदर या यंगर कजिन, कोई भी है, उसको तो बोलूंगा ओए लेवल्स मत करो यार. अच्छा ना वैसे क्यों? यार आई फील लाइक द स्ट्रेस एंड प्रेशर आई हैड फॉर ओए लेवल्स, आई हैव नॉट इवन हैड दैट एवर, नॉट इन माय कॉर्पोरेट लाइफ, नॉट इन माय यूनिवर्सिटी. वैसे ऐसा क्या स्ट्रेस था? मुस्तफा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ मेरे पिछले पॉडकास्ट में जो ओए लेवल से आए हैं, दे हैड द सेम रीजन कि यार ओए लेवल्स में जो स्ट्रेस होता है वो एक तो वो वर्थ इट भी नहीं होता, ठीक है, worth it only होता है to get into a good university, but again as you mentioned कि if you're involved in other things, ECAs वगैरह आप कर रहे हो तो शायद ग्रेड्स की ज़रूरत नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. बट अगर OA लेवल्स ना करें तो क्या करें पाकिस्तान में तो ऑप्शन ही नहीं है ना. अच्छा कि वो IB भी नहीं है, बट इट्स नॉट जस्ट द प्रेशर ऑफ द ग्रेड्स. जो मुझे याद है जो मेरा डे टू डे लाइफ थी इन OA लेवल्स, you go to school 8 to 2, you come home, you have lunch, एक ट्यूशन पे गए, फिर दूसरी ट्यूशन पे गए, तीसरी ट्यूशन पे गए, नेक्स्ट डे फिर से रिपीट. तो उसमें it kind of burnt you out at that time. And then everybody knew कि OA levels क्या है, क्या grades आए, वो pressure अलग, family pressure अलग, the money that you're investing in this education उसका pressure अलग. So if you think about the Canadian system, कितना chill है उनका, and you know they don't have that much pressure at that age, but eventually when they come to university, then it becomes stronger and as you grow up. But at that age, I remember कि हमारे एग्जाम्स होते थे क्रीक विस्टा के साथ एक स्कूल था, I forgot the name. कोई बेहोश हो रहा है, किसी को बहुत गर्मी लग रही है, कोई 2 दिन से सोया नहीं है, और it was just too much. It was chaotic. I'm sure, yeah. So I was at the end like मेरे जो होप्स थे कि मैंने OA levels किया है तो मैं लाइफ में, when I went to Zabist, I was sitting in the same room जहाँ पे सबने, किसी ने मैट्रिक किया है, किसी ने इंटर किया है, and you know it didn't really matter. And they're equally as good. Even could be and smarter. I feel like they were smarter. हमने बहुत
invest कर लिया time and energy into getting that good grade and they invested in that. जो street smartness थी ना वो OA level students में इतनी नहीं थी, क्योंकि वो पढ़ाई पे ही बस लगे रहते हैं। पढ़ाई पे ट्यूशन यहाँ वहाँ, वो जो सब थे वो एक्स्ट्रा करिकुलर और कुछ तो ऐसे थे जो पार्ट टाइम काम भी करते थे, which is very unique for Pakistan. एंड डू यू थिंक रियल वर्ल्ड में वही मैटर करता है और ग्रेड्स मतलब ऑब्वियसली पीछे रह जाते हैं? So ever since I went to Zabist, my first, not even my first year, when I just applied, उसके बाद से no one has ever asked me कि तुम्हारे क्या grades थे OA level. This is like correct. probably Yeah. after like पता नहीं कितना time. So it didn't really matter. And once you go into university, nobody asks you your grades. So that was a plus point. And the only thing was कि OA levels के बाद life seems pretty easy. और इसका example like I was telling my friend like where बहुत time पहले मैं कहा कि when you play FIFA legendary mode में और उसके बाद you come to like you know semi pro professional, so it's just like that. And once you come to corporate world एक दो साल लग गए ना, so then you're like it's like amateur beginner level. So the pressure goes like this. Yeah. And I felt like it would go like this. Yeah. और फिर सिटी स्कूल के बाद यूं टू ज़ैबिस्ट। अच्छा वैसे वाई ज़ैबिस्ट? So city school के बाद South Shore. Oh sorry, A levels के बाद फिर वाई? Yeah, A levels में results weren't the best either. तो मैं नहीं पूछूंगा, कोई Yeah. मसला नहीं है। But हाँ, I wanted to be in Karachi. I did get admission to IBA, conditional offer. They were like, कि आप अपने A levels में 2 subjects फिर से दे दें. We want a B average. IBA was good. It was very far though. I was living बिल्कुल CVU के इस तरफ, वो उस तरफ. हाँ उधर। And I was like, you know, is it worth that? So फिर मुझे वही IBA को सुन के ना, and when I went for admission interview, मुझे वही OA levels का PTS जो होता कि it's going to be on the same wavelength. Zabist, I knew it's going to be chill, it's going to be nearby, it's going to be a good vibe, you know. And what was the role of your family in all of this? Because usually नहीं आपके family बोलती है भाई इस यूनिवर्सिटी में जाओ तो करियर बन जाएगा, Yeah. ये कर लो तो कर लेगा। तो how was your family's reaction when you So- said कि मैं IBA नहीं जाऊँगा? So my family, they were very happy that I got admission into IBA. Surprisingly, I got IBA में admission and CBM में admission and Zabist में. CBM, the campus was good, but it never really interested me going that far. So travel का तो अब my family is, you know, old school. They're like Karachi के हालात not the best. तुम nearby हो गए, that's a good thing too. Zabist is not as bad. And my sister had also been to Zabist. So that kind of played its part. IBA, it was a good accomplishment for me, but I did not regret the decision because जितने मेरे friends IBA गए, I saw how they got burnt A out. levels वाला ही हाल हो गया वापस। Double, multiply that by 2, and some of them they couldn't continue after first or second year because you have to maintain some kind of grade. And the others were just chill. कि बस party चल रही थी. And do you think let's compare your friends in Zabist and your friends who went to IBA. So आज वो जहाँ हैं after so many years, do you think वो regret कर रहे होंगे कि यार IBA चले जाता तो आज मैं इस जगह होता? Yeah, the thing that I've seen is कि बंदा सिटी स्कूल में हो, बीकन हाउस में हो, कहीं भी हो, ठीक है, साउथ शोर में हो या लाइसियम में हो या ग्रामर में था, या पे वो बाहर से पढ़े या ज़ैबिस्ट से पढ़े या CBI में, एट द एंड लाइक आफ्टर आई से 5 to 7 years later, everyone's pretty much on the same level, one way or the other. There's no one के everyone's made it. किसी को ज़्यादा टाइम लगा, किसी को कम, but everybody makes it at the end. So इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं. It's more like maybe you learn more things theory based in IBA, but Karachi, as you know, is all practical. जो मैंने Zabist में भी theory पढ़ी ना, it didn't really work out. So you had a good time in Zabist. एक तो मैं जब Zabist देखता था तो यार ये तो 3 घर खरीदे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी Yeah. घर बना कैंपस बना दिया। TMU now. Pretty much जो राइटसन यूनिवर्सिटी है, और तो Zabist कभी यूनिवर्सिटी तो फील ही नहीं आई। और हम तो जैसे कराची में हम तो मजाक ही उड़ाते हैं और Zabist जाता है, मतलब उसको पढ़ने नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं करना चाहिए। तो कैसा लोग मजाक उड़ाते थे अराउंड यू कि यार ये कहाँ Zabist चले गए? So Zabist was like a world in its own. Okay. बाहर से उतना इंटरेक्शन था नहीं. Zabist के इवेंट्स काफ़ी अच्छे थे, पढ़ाई भी it was good enough, and it was just a very homely, comfortable vibe. It was nearby, campuses आसपास है. It was pretty like chill. Like I always say कि Zabist was a very good decision for me. Zabist में आपने क्या पढ़ा? BBA. Okay. Zabist के बाद फिर क्या किया? So Zabist के बाद जो है I graduated. मैं तो सर बाहर घूमने गया, और जब मैं बाहर घूमने गया I went to England. England जाके ना मेरी sort of एक
not like I got a reality check Okay. कि दुनिया इतनी आगे जा चुकी है और हम पाकिस्तान में इतना पीछे. I've been traveling before, but this was my solo trip. I went solo. मेरे 2 फ्रेंड्स थे वहाँ पे. एक LSE की उसकी ग्रेजुएशन थी, एक जो है एडिनबरा से आया था. मैं कहा यार London is like so far in advance. The ecosystem वहाँ पे, the commute, transit, walking, all that. I really enjoyed those 2 weeks. And at that time, I already had the permanent residency of Canada. So once I came back, I was like, you know, I'm gonna go to Canada. थोड़ा सा मैं जब तक so I started looking at universities. I came back in the summers, and I had missed that time जहाँ पे सबने jobs के लिए apply किया and everybody got a good job. So I came back. July, August में मैं I started searching for jobs. I started searching for universities in Canada. So Canadian universities for a masters, they wanted experience. They didn't want कि आप सीधा BBA करके आ जाएं क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि जो मास्टर्स की जो एजुकेशन थी ना क्वींस में, it was more about कि what you've done in your life and you relate to that than theory based. So I said, okay, while I apply, I've already missed the deadline for the September cohort. Next September, I'm gonna go and I'm gonna try to go in the summer to Canada. के 2 महीने I settle in. And at that time, I got a job at a marketing agency. So marketing is something I always wanted to do. वहाँ पे I said, okay, let me learn the corporate world. That was my first job. Internships की थी, but you know, internships were pretty chill. Intern क्या ही करता है? तो photocopy तो सही इधर उधर chill ही बैठा होता था मैं वैसे. सही. तो that job, even though I did for 6 months, उसने मुझे बहुत सिखाया. I was at a very junior position, and then I saw कि you know, कराची का जो corporate ladder है, it is very difficult. It is very difficult. कि I didn't understand कि at that point कि ये इसकी growth क्या है. So I wasn't even looking towards it. कितना टाइम लग जाएगा, क्या trajectory क्या है, टाइम लगेगा, क्या करना पड़ेगा. इस एजेंसी का भी इतना बड़ा स्कोप नहीं लग रहा मुझे. इनके ग्रोथ मुझे इतनी नहीं लग रही. They were doing a loss anyway. So eventually मैंने कहा कि चलो I have to leave anyway. तो मैंने एजेंसी छोड़ दी. I was just doing freelance clients क्योंकि वो उसमें at that time I learned how to pitch clients, how to manage their digital presence. So वो सब मैंने सीख लिया. तो वहाँ से मार्केटिंग का शौक पैदा हो गया था. हाँ, मार्केटिंग उस टाइम पे तो सर इवॉल्व भी हो रही थी. लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम तो आ गया था. And what year was it? This was 2017. Okay. तो 2018 स्टार्टिंग तक you know I did my own thing. और when I started doing my own thing, तब मुझे वो entrepreneur काफ़ी मजा आना शुरू हुआ कि अच्छा all the money that I'm getting is mine. अच्छा, ये own thing पे आते इसको थोड़ा explore करते हैं. ये own thing क्या है exactly? So I was a social media executive at the marketing agency. Okay. And then I started bringing in clients. तो जब clients में ला था ना एजेंसी में, तो I was only getting like a 30% cut only for the first month. ठीक है, और काम भी सब मैं उनका कर रहा हूँ. वैसे sorry, ये clients लाते कैसे थे? Like so they were just in my network, you can say. Oh, कि okay. मेरे एक friend है, उसने कोई ढाबा खोल लिया तो उसकी online presence आई. Zamzama United Football Club जो रफीक मलिक है, he was a friend of mine. तो उसका मैंने काम संभाला. तो आप उनके लिए डिजिटल मीडिया उनको संभालते थे? Yeah, like just online presence, उससे flyer wire बनाया, तो उससे photography वगैरह. तो when I started bringing in clients and then I was doing account management वाला काम, तो मैं कहा ये सब काम तो मैं कर रहा हूँ, तो पे एजेंसी को क्यों पैसा जा रहा है. करेक्ट. तो इवेंचुअली एजेंसी में भी मुझे इतनी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी. I left that. जो जितने clients थे वो सब भी मेरे साथ ही आ गए at the end. And then I had a desk and a table in my home in basement. वहाँ पे मैंने start किया और eventually I got more clients. All the clients that I ever got, they were all in the network. या फिर referral. कोई भी ऐसा client नहीं था जिसको मैंने pitch किया. एक बेसमेंट गेमिंग कैफे था जमजम वहाँ पे. I went there, I really liked it. तो फिर मैंने उनको मैसेज किया, ओनर से बात हुई. The owner at that time was probably like 16-17 years old. इतना बच्चा सा था कोई. तो he came on board. उसके साथ काफ़ी मज़ा आया गेमिंग को प्रमोट करने की. गेमिंग हमेशा से पैशन था. तो I was doing that and then I found out कि इस काम में इतना टाइम भी नहीं लगता कि अब तो क्लाइंट्स आ गए. They're on a retainer basis or you can do your marketing वगैरह. Even so कि मेरे पास पेशावरी आइसक्रीम भी था क्लाइंट. मदर कमर्शियल वाला. वो अभी भी मुझे मैसेज करता है कभी कभार. तो all these local clients. अच्छा, my target was कि ये जो clients है ना, जिनको कोई भी टारगेट नहीं करे क्योंकि इनके पास बजट ही नहीं है. पेशावरी आइसक्रीम में कहा कि मैं तुम्हें महीने के 5,000 दूंगा. और मैंने कहा अच्छा अगर मुझे आइसक्रीम खानी हो, उसने कहा जितनी आइसक्रीम खानी खा लो. मैं कहा बस ठीक है, पैसे भी आ रहे हैं, आइसक्रीम भी आ रही है, कराची की गर्मी भी है,
Sorted. Sorted और ये it's just something on the side. सही. ठीक है, I'm going away anyway. तो at that time मैंने apply करना शुरू कर दिया. I came to Canada without an admission. क्योंकि उस time पे it was still pending. I came in, I lived in Hamilton for 2 weeks with my cousins. फिर मैंने कहा कि नहीं, I want to explore. Toronto बहुत दूर है यहाँ से. I want that independence as well. I took a room in a small basement, shared space, Mississauga में. वही पाकिस्तानी community I found online. And I told them कि देखो, I want month to month basis. अगर मेरा admission जहाँ भी लगेगा ना, अगर TMU पे लगा राइटसन तो मैं वहाँ डाउनटाउन चले आऊँगा. U of T York और मैंने क्वींस पे अप्लाई किया था. मैं कहा क्वींस पे चले गया तो आई हैव टू कंप्लीटली मूव आउट. इवेंचुअली क्वींस में एडमिशन लगा. आई वाज वेरी एक्साइटेड. आई टोल्ड माय अंकल ने कहा आओ मैं तुम्हें किंगस्टन दिखा दूँ पहले बिफोर यू मेक अ डिसीजन. अंकल ने मुझे पिक किया. ही केम फ्रॉम मार्कम. वी वेंट ऑल द वे 3 घंटे. अंकल ने मुझे पूरा दिखाया शहर और मैंने उनको बोला अच्छा शहर तो दिखा दो मुझे. उन्होंने कहा नहीं यही शहर है, यूनिवर्सिटी शहर है. मैं कहा यार किंगस्टन इतना छोटा शहर है. मैं बिल्कुल रिसर्च नहीं की हुई थी. बट आई वाज लाइक यू नो आई नो फॉर अ फैक्ट कि आई विल इवेंचुअली मूव बैक टू टोरंटो. आई ऑल्सो फील लाइक आई एम कमिंग फ्रॉम कराची. इट्स सच अ नॉइजी एंड यू नो बिजी सिटी. आई हैव नेवर लिव्ड इन अ स्मॉल सिटी. गाँव वाँव गया हूँ मैं अपने फ्रेंड्स के. सिंध काफ़ी घूमा है मैंने. बट आई ऑलवेज यू नो विजन कि मैं कभी किसी छोटे शहर में रहूँ और देखूँ क्या लाइफ है उनकी, क्या होता है. तो आप यू नो इट्स अ 1 year प्रोग्राम और उसके बाद आ जाऊँगा मैं. सो इवेंचुअली आई मूव टू किंगस्टन एंड जब वो ईयर ख़त्म हुआ मैं पाकिस्तान गया. पाकिस्तान से आया मैंने जॉब स्टार्ट करना शुरू की ढूंढना. उसी वक्त कोविड आया. तो मैं कहा अब तो मैं इसी शहर में फंस गया. तो वैसे आपको कराची कैसा लगता है एज अ सिटी? या कराची इज स्पेशली आफ्टर लिविंग इन टोरंटो एंड गोइंग बैक. Karachi is, for me personally, अगर मैं अपना honest opinion दूँ, it's not a livable city for your mental health. It's not. ठीक है, जो मुझे यहाँ की आदत हो गई है ना कि अब कराची में I'm always like under not pressure but कि अच्छा मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा वॉलेट कहाँ है, ये प्रेशर वो प्रेशर, अभी कोई आएगा, ये बाइक वाला का अच्छा मेरा फ़ोन चोरी हो चुका है बहुत दफ़ा अच्छा, कराची में. और मेरे उस टाइम पे ना पैसे होते थे, मेरे पास ब्लैकबेरी था बहुत. मैंने जनाब ईदियाँ सबसे मांग के इधर उधर पैसे जमा करके मैंने ब्लैकबेरी लिया और ब्लैकबेरी चोरी हो गया. कोई सबसे क्रेजी स्टोरी है रॉबरी की? इट्स नॉट अ क्रेजी स्टोरी. हम लोग जमजमा पे थे, मी एंड माय 4 फ्रेंड्स. माय फ्रेंड्स डैड हैड अ प्रीमियो कार तो वो गए हुए थे. तो मेरे फ्रेंड ने वो चला रहा था. उसने गाड़ी लॉक नहीं की हुई थी. वी वर एट अ स्टैंड स्टिल ऑन अ रेड लाइट. सबसे फैंसी गाड़ी उसकी थी. इस साइड से जो है मतलब वी आर गोइंग दिस वे, साइड से बाइकर्स आए 2. एक आया उसने नॉक वो क्या गन वन दिखाई, उसने निकाला. उसने कहा जितने फ़ोन सब दे दो. उसने अच्छा हमने सब अपने फ़ोन दे दिए. उसने आगे देखा ट्रैफिक लाइट. उसने कहा अभी भी रेड. अच्छा उसने कहा कितने पैसे हैं वो भी दे दो. अब मेरा फ्रेंड पीछे वॉलेट से निकाल रहा है पैसे एक एक करके. कितने दो? मैं कहा भाई दे दे जितने भी हैं. फिर वो दिया हमने. और कुछ था नहीं उस टाइम पे, ना कोई फैंसी घड़ी थी ना कोई वॉच. तो बस वो चले गए. आई वाज लाइक प्रीटी नॉट शॉक्ड और यू नो इंसान बस थोड़ा सैड हो जाता है कि यार I क्या. was just like you know depressed after कि यार this isn't the life that I want to live in Karachi. तो कराची अभी भी मैं जब गया था you know देख तो poverty बहुत ज़्यादा है जगह. and you know you always feel कि मैं क्या improve कर सकता हूँ. but it just feels like कि जब मैं इस दफ़ा गया ना so I went for a longer time. I just felt like जो 2017-18 का कराची था जो मैंने छोड़ा था, ये कराची उससे भी 5 साल पीछे चले गया है. It's only getting worse and worse. and roads, infrastructure, electricity, gas, bills पता नहीं इतने high आ जाते हैं. There's no law and order. I just feel like you know it's slowly becoming unbearable. जिससे मैं बात करता हूँ वहाँ पे they're like, what's the path for us to come to Canada? If not Canada, somewhere else. Like everybody wants to just run. And वहाँ पे you know this one thing I felt was कि a lot of people they have a lot of frustration. वो frustration is like in their blood now. और वो it just takes like 1 second for it all to come out. और वो पे आती है रोड पे, वो आती है कभी you know in sudden outburst. मैं तो फिर भी विंटर्स में जाता हूँ तो you know मौसम अच्छा है and everyone's chill. अभी आपने मेंशन किया कि जब आप जाते हो तो आपके दोस्त पूछ रहे होते हैं कि यार कनाडा कैसे आना है, बाहर कैसे जाना है. Do you really think life in Canada is easier than life in Pakistan? Given the fact that everything here is so expensive now. Yeah,
It's a mix, ठीक है. I know people जो पाकिस्तान से यहाँ आके they're regretting their decision, they are suffering, and there are people who are thriving. So it all depends कि आपने क्या किया आके. अब कुछ लोग हैं जो I know पाकिस्तान से यहाँ आए, they live in the same bubble, they have the same kind of friends, वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते. जॉब जो है वो मुश्किलों से जब मिलती है तो उस पर टॉप परफॉर्मेंस नहीं करते. वही जुगाड़ सिस्टम कभी यहाँ नहीं चलता. कनाडा ओवरऑल इज़ ऑल्सो सफरिंग. कनाडा के खुद हालात काफ़ी ख़राब हैं. अब तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि यार अभी जब मैं मैक्सिको गया था तो आई टोल्ड देम कि यार कैन यू गिव मी सम डिस्काउंट, आई एम फ्रॉम अ पुअर कंट्री. तो कहता अच्छा इंडिया. मैं कहा नो, कनाडा. आई एम फ्रॉम कनाडा. कनाडा इज़ अ पुअर कंट्री. उसने बोला भाई डॉलर दो. तो अभी यहाँ के हालात इतने ख़राब हैं कि यू नो actually everywhere is not the best. अच्छा तो कोविड में you were in Pakistan और फिर when did you come back? नहीं COVID में I was in Kingston. You were in Kingston. अच्छा you were COVID में you were in As soon as I came back from Pakistan, I was in Kingston. और उसी टाइम पे I started applying for jobs. मुझे वही. अच्छा but sorry interrupting you, but was your family supportive? और होता है ना कि बेटा आप क्यों जा रहे हो बाहर? होता है ना कि यार. So how was your family's reaction? What was their reaction? My dad, like, he applied for the immigration, so he always wanted कि हमारे पास एक backup हो. So he said, okay, as long as कि तुम 3 साल के लिए जाओ, get the PR card renewed, get the citizenship, and then think कि तुम्हें क्या करना है. ठीक है. But my mom, as you know, even when I go right now, she's like, क्या ज़रूरत है वापस जाने की, stay in Pakistan. But now she doesn't say that anymore, because now she's seen कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, and now she's like, नहीं, it's better कि तुम बाहर. वो भी practical हो गए. And you know, like, okay, there's this Facebook page group. I just love it. It's called Halat Updates. Oh यार वो मैं जब अच्छा मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. So I came across that page a couple of years ago इस तरह, और मैं जब वो देखता हूँ मुझे डिप्रेशन हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि obviously मैं तो यहाँ हूँ, बट एक तो आपको अपने शहर के लिए बहुत बुरा लगता है. दूसरा फैक्ट ये कि आपकी फैमिली वहाँ रही होती है. I know. आपको डर लग रहा है, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो मुझे तो बहुत डिप्रेशन हो जाता है वो पेज देख के. तो अब मैं कोशिश करता हूँ, बट फॉर सम रीजन वो किसी से आ ही जाता है मेरी फीड पे. So Halat Updates and Junaid Akram, they're my source of unfiltered information. कि असल information क्या है. If you put on news, हमने ये किया, हमने इंडिया के प्लेन गिरा दी, मैं कहा बहुत पुरानी बात होगी, मुझे बताओ कि लोकली क्या हो रहा है. वो नहीं दिखाते. बट दोज 2 पेजेस दे, एंड बहुत ही इंसिडेंट्स मैंने अब देख लिए, और बहुत like it's uncontrolled chaos. ठीक है. there's no law and order. तो पहले भी इतना नहीं था, बट अब जो है ना the suffering has become too much. कि जो ये बिजली के बिल वाली जो suffering है ना, is just I feel like it all could have been contained, but इनने खुला छोड़ दिया. Once it gets too much, then when people don't have money और वो बच्चों को खाना चाहिए, then I feel like it's gonna become like, you know, law of the jungle. I agree. You mentioned Junaid Akram. Same. I'm actually a big fan of Junaid Akram. Especially his Ask Ganji series. I watch that all the time. तो वो एक तो मुझे वो नहीं भी सुनना होता because of the fact कि मैं इतना डिप्रेस हो जाता हूँ वो सुन के जो लोगों के सवाल होते हैं. But I just cannot wait कि यार वो एपिसोड जिस दिन नहीं आता ना, जैसे for example usually I'm listening when I'm driving या when I'm at the gym. Yeah. So मेरा जिम अच्छा नहीं होता अगर मैं जुनैद अकरम की आवाज़ सुन रहा हूँ. That's so sad. But even my wives like क्या जिम में सुन रहे होते हो, बंदा जिम में गाने सुनता है, मैं जुनैद अकरम सुन रहा होता हूँ. The thing about his podcast is कि चलो for me because I'm unmarried, so I like to listen to those stories कि जिनकी early शादी हुई है या पे you know their matchmaking. Those are like pretty interesting. I even send it to my mom. But for me, I play a lot of Lego. अब इस age पे आके I play Lego because I can afford it now. तो मैं अपना Lego का बॉक्स खोलता नहीं हूँ क्योंकि I have to make the Lego while listening to Junaid Akram. अब उसके एपिसोड्स बीच में नहीं आए थे, तो उसी का कोई फ्रेंड है पाकिस्तानी, उसको मैंने सुनना शुरू किया. It was too much economy related. मैं कहा मुझे वैसी my finance is weak तो. I don't know. But Ask Ganji Swag, sometimes I don't even know कि 3 घंटे हो गए उस एपिसोड को मैं सुन रहा हूँ. मतलब it's never कि I'm watching him. It's always in the background. कभी सफाई की मैंने, कभी तो सही अलमारी सही की. Usually टीवी पर लगा के लैपटॉप पे I'm doing all my work. जब जिस दिन वर्क फ्रॉम होम होता है तो उसका एपिसोड लगा होता है. Even though I keep thinking कि मैं कभी फ्लाइट पर जाऊँगा, ट्रैवल करूँगा तब सुनूंगा. I never listen on the travel, but जब भी I'm at home in a relaxed state, मैं कहा चलो अब सुनते हैं. In one of his episodes he actually mentioned क्या लोगों ने मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक बना के रख दिया है. सुनो actually proper. And you know actually उसके एपिसोड में there's like a few questions of mine as well which he's done. Junaid Akram से कभी वो
I replied to his stories and he replies. He's pretty fast. एक दफा I was at Karachi Express recently, Etobicoke, and Junaid Akram ki there was a video coming. बस पे लोगो Karachi Express का आ रहा था. And they were showing the Karachi food. तो मैंने उसको वो भेजा, मैसेज किया कि your picture and videos running on the TV here. This is the location. तो उसने अपने नेक्स्ट एक दो एपिसोड में बोला कि आई हैव गॉटन मैसेजेस फ्रॉम पीपल फ्रॉम यूके, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम कनाडा जो मेरी वीडियोस यूज कर रहे हैं टू प्रमोट देयर फूड एंड विदाउट अच्छा तो ये मतलब वो है कंटेंट मैं खुद नहीं बनाया उन्होंने जुनैद अकरम खुद नहीं बनाया बट They're दे just यूजिंग using his हिज face. वीडियोस अपना लोगो लगा के टू प्रमोट द फूड दैट दे आर सर्विंग सो उसमें इज लाइक this is worthy of a lawsuit, but he never comes to Canada. Kabhi Canada आया यार तो he'll see. वो he goes to the US a lot but Yeah. No, he says कि Canada is too much India. I don't. Which is true, you know. Yeah. यहाँ पे it is becoming Yeah. that. and chalo nahi, I mean they're nice people. I have like a lot of Indian friends and I just feel like they're great people but let's move on. अच्छा तो university experience कैसा था Queens में? So Queens, when I went there, so even though I worked for 6 months, अब मेरे जो सब classmates थे, they were like, you know, 6 years experience, 10 years experience. Masters में everybody is pretty, you know, aged as well. So they're coming with a different background. I was one of the youngest students there. Maybe I was like 24, 25 at that time. But जो Queens का campus है, जिसकी campus life है, so Queens is basically कि ये university है, ये डाउनटाउन है और फिर नीचे पानी है. सो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग जो इट्स इन अ वेरी फ्यू प्लेसेस. ऐसा बहुत कम है कि शहर का डाउनटाउन आपके साथ है, उसके बीच में यूनिवर्सिटी और फिर पानी है. तो उसके वाटर लाइफ बहुत अच्छी है उसकी, यू नो, डाउनटाउन इज प्रीटी गुड. क्वींस इज ऑल्सो एट सम प्लेसेस नोन एज अ पार्टी स्कूल, क्योंकि वहाँ पे ये कि यू वर्क हार्ड एंड देन यू प्ले हार्ड. जिसका जो वर्क हार्ड है वो दैट्स टू मच, एंड देन जो पार्टी है वो भी टू मच. तो ये जो सेंट पैट्रिक्स डे और होम कमिंग, क्वींस इज प्रीटी फेमस फॉर दैट. और आई हैव बीन टू लॉट्स ऑफ देम एंड क्वींस इज जस्ट पीपल जस्ट लूज इट. सो दैट वाज अनदर पार्ट ऑफ क्वींस. बट जो कैंपस उसका है, जिसकी ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, the support that they give over there, it's amazing. जो instructors हैं, they're amazing because they're, so this is the difference I felt from Zabas to Queens. Zabas में you're an instructor, ठीक है, you're teaching them a theory जो आपने कभी अपनी लाइफ में खुद टेस्ट नहीं की. Correct. Queens में if I'm teaching something, उस बंदे ने अपनी ही पास में वो either business start करके वो चीज़ टेस्ट की हुई है, या पे as in a corporate world he's tested that theory. So when he's telling his experience, he's not teaching. So that was the one difference that I saw, or it's like I'm sharing my experience. So you tell like the best insights out of it. Theory तो theory चल रही है, book में लिखा हुआ है, किसी ने लिखी थी, update हुई नहीं हुई. So that is something that was really good. अच्छा, अब marketing में at Zabist, they didn't teach anything in 2017 तक about social media. And social media was booming at that time. जितने लोग ग्रेजुएट हुए थे सब सोशल मीडिया में ही आकर काम कर रहे थे. और ज़ैबिस ने हमें वही नहीं पढ़ाया. ज़ैबिस ने इनोवेशन वगैरह बहुत कम पढ़ाई. तो क्वींस में वो बहुत थी. अब देयर वाज वन थिंग दैट इवन इन ओएल लेवल्स मैंने बहुत बिजनेस केस स्टडीज पढ़ी. जब मैंने क्वींस में केस स्टडी पढ़ी ना, दे वर टेलिंग अस अ होल केस स्टडी अबाउट Loblaws, उसके जितना पूरा उसका एम्पायर है. And at the end of that week, they did a field trip and they took us to Loblaws के headquarters. उन्होंने कहा अब जो तुमने पढ़ा है अब तुम देखो और अब समझो. Practical. So that kind of opened your brain कि अच्छा it's like a different dimension. तो वो उसका बहुत अच्छा experience था. If I'm learning about a business, तो उस business का CEO आके बताएगा अपना experience coming as a guest lecture. हाँ. तो you know that kind of gives you a really strong network. और आई रिमेंबर बहुत इवेंट्स करते थे वो लोग के, दे आर प्रीटी बिग ऑन इवेंट्स के, यू नो, नेटवर्किंग इवेंट्स. क्वींस नेटवर्किंग वाज प्रीटी गुड. वन थिंग आई आल्सो रियली लाइक्ड अबाउट क्वींस वाज कि जो मैंने यहाँ देखा TMU में और UofT में, UofT एंड TMU आर बोथ वेरी सेंट्रल इन टोरंटो. तो जो भी अंदर घूम रहा है ना, कुड बी अ टूरिस्ट, कुड बी समबडी लिविंग देयर, जो भी क्वींस में घूम रहा है, that person is either a student, a faculty, or related to Queens in some way. So if you see Queens में you see people multiple times.
यहाँ पे एक बंदे को एक दफ़ा दिख ले शायद पर्सन ना मिले तो वहाँ पे मेकिंग योर नेटवर्क वाज मच ईजियर और फिर मैंने काफ़ी वहाँ लोकल क्लब्स भी ज्वाइन किए हुए थे उनके कम्युनिटीज़ And what did you study सो आई exactly? डिड अ मास्टर्स इन बिजनेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप Oh, okay. So that's pretty interesting. बड़ी नई Yeah. चीज़ है जो लोग usually लोग standard masters in finance एंड and yeah. द हैक वाज कि जब मैं अप्लाई कर रहा था Hmm. सो देयर वाज अ बिग हर्डल इन द वे ठीक है जिसको मैंने कहा कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आई एम नॉट गोना डू अ जीमैट मैं जीमैट नहीं दूंगा इट इज़ जस्ट टू मच वर्क Hmm. तो मैंने वो प्रोग्राम्स ढूंढे जिसकी जिसमें GMAT नहीं चाहिए. जीमैट नहीं चाहिए Okay. तो वो ज़्यादा तक MSc वगैरह थे किसी हर MBA के लिए तो वो चाहिए था तो मैं व्हेन आई फाउंड दिस प्रोग्राम आई वाज रियली इंट्रीग्ड बाय इट क्योंकि इसका स्टाइल भी बहुत डिफरेंट था इट वाज मोर अबाउट कि यू ब्रिंग योर आइडिया एंड यू वर्क ऑन इट एंड वी हेल्प यू अराउंड इट तो आई रियली लाइक दिस प्रोग्राम इंस्ट्रक्टर टीम उसकी बहुत अच्छी थी इट वाज आल्सो अ न्यू प्रोग्राम एट दैट टाइम इट वाज okay. लाइक मे बी 2-3 years तो वो they were also open to a lot of feedback तो मैंने वहाँ काफ़ी उनको feedback दिया and they kind of implemented a lot of things as well And किस साल में आप graduate हो? so I did this program in 2018 to 2019 2019 ठीक है. अच्छा graduate होने के बाद ठीक है masters कर लिया. So was it easy to find a job right after? so Queens में when I was in my summers का program start हो गया था तो Queens Innovation Center which is about their startup space Incubation center. incubation ठीक है. center तो उसके अंदर there was the opportunity कि आप you get in with a business idea and we'll give you seed funding and we'll also give you a stipend Okay. तो उन्होंने कहा कि हम आपको 4 महीने के टोटल $7,000 देंगे and this was like the first money that I was going to get In Canada. yeah ठीक है. and they said कि हम आपको $4,000 seed funding देंगे business की and at the end of the term there's going to be a pitch competition if you win that you can get 30 20 10 5 whatever position you get तो my classmate at that time तो हमारे program से ही काफ़ी लोग जाते थे because it was very related to it so she had this idea कि she was from Afghanistan so she said कि मेरे पास एक idea है and you know this space right now is too crowded with technology मेरे पास एक product है she's been to Afghanistan back and forth she said कि मैं वहाँ से saffron लेके आऊँगी यहाँ पे हम उसको बेचेंगे और वहाँ पे the unique thing will be कि हम जो है सिर्फ women farmer से लेंगे it will be a women empowerment social enterprise which is very unique right now तो और उसने कहा उसकी बहुत grants opportunities भी available है और उसने कहा कि उसने मुझे ऑफर की कि do you want to come on board because to be part of this program, I need a co-founder. I can't go in alone. So मैं कहा ठीक है, I'm in. Like I had nothing planned for the summer. नेकी और पूछ हाँ, और मैं free बैठा हुआ था उस टाइम पे मई का टाइम था. I was just looking for jobs. तो जब when I went through that program, so eventually we came third position in the in the pitch competition. We got 10,000 उसके. I was pretty happy with the money that I made. मैं कहा चलो मेरा rent वगैरह सब cover हो गया. And when I graduated, तो मुझे जो director of that innovation center था, Craig, so he gave me a TA position as well. Okay. So I did that for the winter term from September to December. फिर मैं पाकिस्तान से वापस आया and then after a few months COVID and Queens में there were lots of opportunities. एक उनका program था work study program. It's about कि जितनी किंगस्टन की लोकल नॉन प्रॉफिट्स हैं या बिजनेसेस हैं या चैरिटीज़ हैं आप जो है हमारा स्टूडेंट लें हम उसको पैसे देंगे आप जो है उसको एक्सपीरियंस दो वो मैंने मल्टीपल टाइम्स किया क्वींस के अंदर ये जो एग्जाम इन्विजिलेशन होती है उसकी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है देयर ऑल मिनिमम वेज बट यू नो एज अ स्टूडेंट पैसे आ रहे थे किचन मनी हो रहा था पूरा मतलब कि गुजारा हो रहा था तो इसी सेविंग भी हो रही थी किंगस्टन यू नो जब मैं वहाँ रहता था पूरे टाइम जब मैं वहाँ रहा हूँ मेरा रेंट हमेशा $500 से ऊपर नहीं गया एंड इट वाज अ शेयर्ड स्पेस छोटे छोटे घर और आज के टाइम पे अगर आप उधर जाएं तो क्या रेंट होगा अभी few of my friends still live in Kingston because they were doing PhD उनकी लीज पुरानी है बट इफ यू ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू प्लेस 750-800 you can get a room तो 500 to 700-800 तो अगर आप परसेंट टर्म्स में देखें so that's a big increase in the last 5 years 4 but years क्योंकि वहाँ पे सबकी लीज इतनी पुरानी चल रही होती है and Kingston is a city where जब when you want to retire that's where you go
So everyone's pretty rich already, इतना रेंट का वो है नहीं अभी क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हाँ तो बहुत हाउसिंग अवेलेबल है अब तो और हर सस्ता जगह मिल अवेलेबल जाएगा है या हाँ अब तो प्राइसेस काफी नीचे आ बट गए फिर भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे बिकॉज अब लोगों की जॉब चली गई हैं तो वो एक अलग इश्यूज हैं तो फिर अभी वेयर आर यू वर्किंग so I'll continue the Kingston story Sure, then I'll yeah. come to this so Kingston में जब pandemic थोड़ा सा slow हो गया मास्क वगैरह सब पहन रहे थे summer had started तो किंगस्टन में there was a Pakistani association ठीक है I was not a regular member but मैं जाता आता रहता था कि कभी पाकिस्तानी food was not available एक दो थे but so ठीक है they weren't the best तो मैं उनके पास जाता था काफ़ी इवेंट्स में क्योंकि वो खुद खाना बनाते थे सब तो उसका जो प्रेसिडेंट था ही वाज अ HR रिक्रूटर ओके तो मैं उसके पीछे था कि यार मुझे कोई जॉब वॉब ढूंढ दो कहीं भी आई वाज ओपन टू ऑटोवा मॉन्ट्रियल टोरंटो किंगस्टन इज सेंट्रली लोकेटेड तीनों इधर उधर हैं तो उसने कहा कि व्हाट इफ आई फाइंड योर जॉब इन किंगस्टन डू यू वांट टू स्टे तो मैं कहा चलो इफ आई जस्ट वांट अ जॉब क्योंकि एट दैट टाइम में ये स्टार्टअप भी छोड़ दिया था पैसे भी नहीं आ रहे थे एंड आई वाज लाइक यू नो एट दिस पॉइंट आई विल डू एनीथिंग तो ही फाउंड मी अ जॉब इन डाउनटाउन किंगस्टन टू मैनेज अ कोवर्किंग स्पेस ओके तो मैं कहा यू नो इवेंचुअली आई डू वांट टू मूव टू टोरंटो बट इफ आई कैन गेट दिस एक्सपीरियंस व्हाई नॉट so that was a very unique experience कि downtown Kingston में काम करना it was like कि I thought कि you know it's gonna be so hectic it was the slowest job ever and then I found out कि Kingston का ही यही culture है कि it's very slow सही small town slow based तो मैंने वो एक साल किया काम I was probably in my third year in Kingston now मुझे Kingston में I became too comfortable so that co-working space was bought out by one of our clients जिसको मैं लाया था so they didn't need me anymore मैं कहा यार I'm suffering from my own success now मैं बंदा लाया उसने कब वो खरीद लिया और मुझे निकाल दिया so then I got a job in a meal prep company in Toronto Okay. और मैंने उनको बोला था कि मैं फिर next year move होऊंगा Okay. because it was around September October तो मैं कहा कि अब winter में क्या ही move हूँ अब मैं next year move होऊंगा and at that time I was paying 500 rent And they're open to it. they're open to it मेरा वो I wanted to save some money as well तो मैंने co-working space एक और co-working space में I got a membership and I started working there जब मैं वहाँ टोरंटो फाइनली मूव हुआ in May for the company के काफ़ी events वगैरह थे and at that time 2022 में you might remember interest rates काफ़ी लो थे खेल रहे थे सबके साथ और उस कंपनी दे आई थिंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा था तो उनके काफ़ी एक्सपेंसेस बढ़ गए थे they had to lay off a few people I was you know I wouldn't say unfortunately I would say fortunately I was part of it because सबसे the best thing about Canada is employment insurance वो आपको मिल जाए आपकी लाइफ सेट है I think एक साल तक they give you enough money कि you can sustain yourself even though it's taxable but उस टाइम के लिए गुजार रहा है तो once I was you know doing nothing पैसे आ रहे थे I started doing part-time jobs वगैरह वो की eventually I got a job at the Toronto Business Development Center क्योंकि at one point my family was like you know वापस आ जाओ नहीं वो तो था ही वापस आ जाओ पर कहते कि रूटीन खराब हो रहा है you know you're just eating and just playing video games and you know इसलिए थोड़ी भेजा था कि वहाँ फ्री बैठो तो I got a job at this company Toronto Business Development Center very junior position the most junior position but I knew कि I have all the experience I have a master's degree I just need an in to the ecosystem and it was a business accelerator मैंने कहा मैं business incubator background से आ रहा हूँ वहाँ मैं एज अ स्टार्टअप भी था मैंने वहाँ तो साइट पे काम भी किया था उनके साथ एज अ TA फॉर इनोवेशन कोर्स में आ रहा हूँ तो इवेंचुअली फ्रॉम दैट सोशल मीडिया जूनियर सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव ये मेरी पोजीशन थी एंड आई ऑलवेज हेटेड दैट टर्म जूनियर मैं कि ये टर्म डालने की जरूरत क्या सिर्फ हटा दो सिर्फ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव कर अच्छा दो लिंक्डइन में मैंने सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव लिखा बट ऑन पेपर मेरा वो था जूनियर नाम था और मेरे साथ एक और मेरा यूक्रेनियन फ्रेंड उसने ज्वाइन किया था उसका भी था जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर एंड दिस वुड लाइक यू नो दिस ऑलवेज गॉट अंडर माई स्किन कि आप नॉर्मल कह रहे थे ग्राफिक डिज़ाइनर तो एनी वे इवेंचुअली आई सॉ कि इस कंपनी में इफ़ यू परफॉर्म गुड एंड एक तो मैंने देख लिया कि हार्ड वर्क जब भी कोई बंदा करेगा ना ही गेट नोटिस्ड और कनाडा में यू गेट नोटिस्ड वेरी इजीली क्योंकि यहाँ पे कल्चर इज
बहुत स्लो है. We come from a city like Karachi जिसका है ही culture से hustle करना, and there's no stopping Karachi में. If you've reached this point, then it's time for this point and this point. Canada में what I've seen, and at that time I saw, okay, if you reach this point, then you're chill. I'm talking about the local people here. They didn't want to hustle that much. Friday को 12 बजे के बाद कोई meeting नहीं करता, आधे लोग काम नहीं करते. So it But was, I think, do you think that varies industry to industry? Because मैंने different experiences भी देखे हैं बहुत ज़्यादा कि it's very hectic, बहुत hustle culture है, politics भी बहुत होती है. So don't you think it varies company to company and industry to industry? So this company that I'm working for, it works in a lot of ecosystems. और जितने ecosystems में मैंने partnerships है हमारी collaboration उनके साथ काम किया है, आधे लोग अब ये summers में फ्राइडे को कोई मैं जवाब नहीं देता, आधे लोग तो कह देते हैं कि फ्राइडे तो हमारे कंपनी में ऑफ होता है. और जितनी एम्प्लॉयमेंट ऑन्टेरियो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती हैं हाँ हम मंडे और या फ्राइडे को करते रहते हैं ऑल्टरनेट कि हम कब ऑफ लें. लेकिन तो सबकी पार्टी चल रही है और बहुत स्लो कल्चर मैंने इस साल तो देखा ही है, बट पहले भी देखा है कि बहुत स्लो कल्चर था. मैं हमेशा से ना सोच लिया था कि मैं कैनेडियन स्टैंडर्ड पर नहीं आऊँगा, मैं अपना कराची स्टैंडर्ड ही रखूँगा कि हसल ग्रोथ जितना हो सकता है उतना कर लो, ठीक है. डोंट बर्न योर सेल्फ आउट, बट यू नो ऑल्सो डोंट बिकम टू लेजी. तो इन 7 months आई गॉट माई फर्स्ट प्रमोशन. फाइनली वो टाइटल हट गया, आई बिकेम अ मार्केटिंग एसोसिएट. एंड पहले मैं ये स्टार्टअप इकोसिस्टम देख रहा था, अब मैं आ गया वर्क फोर्स डेवलपमेंट में, विच वॉज अबाउट लुकिंग एट द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड ट्रकिंग इंडस्ट्री. दीज टू इंडस्ट्रीज ऑफन ओवरलुक्ड बाय एवरीवन. जो आता है वो कहता है मुझे डेस्क जॉब चाहिए, मुझे लैपटॉप के पीछे बैठा दो, बट दीज टू इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा पैसा इसी में ही है. और जो भी बाहर से आ रहे हैं उसको तो पता ही नहीं इसके बारे में. जो लोकल स्टूडेंट्स वगैरह भी आ रहे हैं वो इतना नहीं इसको देख रहे. तो माई जॉब वॉज टू गेट सम यू नो एक्टिविटी अराउंड इट. तो इवेंचुअली वो मैंने किया काफ़ी टाइम तक, और फिर मुझे उसी में प्रमोशन मिली. सो मार्केटिंग एसोसिएट से आई बिकेम अ मार्केटिंग मैनेजर. Okay. जब मार्केटिंग मैनेजर बना ना तो आई वाज हैप्पी, बट आई वाज आल्सो सैड कि मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई. मैं क्या ये क्या Ungrateful इंसान हो जाता है. तो अच्छा दिस इज आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर कि सो जब मार्केटिंग मैनेजर बन गया देन आई पुट अ लॉट ऑफ यू नो हसल इनटू इट. क्योंकि जो एक दे वर लाइक अ फ्यू पीपल इन माय कंपनी जो मुझे इतने नहीं पसंद थे, दे ऑल वर बिकमिंग डायरेक्टर लेवल, ठीक है. और मार्केटिंग में वी हैव लाइक अ बिग टीम, वी हैव लाइक 10-15 पीपल, और उसमें से एवरीवनस लुकिंग एट अ डिफरेंट प्रोग्राम. तो मैं कहा नहीं मुझे डायरेक्टर बनना है, ठीक है. आई एम नॉट गोना सेटल फॉर मैनेजर. मुझे पैसे भी और चाहिए, मुझे डायरेक्टर बनना है, और मैं प्रोजेक्ट्स भी और करूँगा. बहुत क्रिएटिव प्रोजेक्ट इधर उधर किए, यू नो, यहाँ तक कि मिनिस्टर ने भी बहुत रिकगनाइज किया और अवार्ड्स काफ़ी हम जीते, यू नो. जो हमारे पार्टनर थे वो भी बहुत खुश है. जब मैं फाइनली डायरेक्टर बन गया ना अभी रिसेंटली, आई वुड से 2-3 months बैक, तो मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ गई. तो अब मैं सोचता हूँ कि यार जैसे अभी समर्स चल रहा है, ठीक है, समर्स में यू वांट टू चिल, यू वांट टू गो आउट. विंटर के लिए ठीक है ये पोजीशन, घर ठंड इतनी है, घर भी रहना है, कुछ करने को भी नहीं है. अब मैं सोचता हूँ कि यार आई वाज हैप्पी एट दैट पोजीशन, ठीक है, आई वाज चिल, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी. अब लाइक आई एम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इट्स नॉट अ 9 to 5 anymore. And when you have stakeholders, multiple stakeholders, government में stakeholders, employment Ontario, वो कभी भी उनका मैसेज आता है, and you know, when is it due? It was due yesterday, हमेशा. तो it was all के growth comes at a cost, and जब इतनी, but it's also like, you know, this is life's curve, like, you know, you're always aiming towards going up. Guys, this is a prime example कि growth से खुशी नहीं मिलती. खुशी तब मिलती जब वो बाई वीकली पेचेक आता है, तो then you're like ठीक है, जब थोड़ा बड़ा पेचेक आ रहा होता है पहले से. it's worth it. Yeah. But you have to make a decision कि इतना जो मेरा वर्कलोड है, if I continue, मैंने देखे काफ़ी लोग, like there are people not in my company but a lot of people, and they're like, you know, and they're like old, they're like 40-45, they're like I'm happy where I am. Yeah, there are a lot of people like I know personally. इतना पैसा नहीं है, Yeah. but इतनी responsibility भी नहीं है, they're happy, and you know it gets by. मेरी mortgage पे off हो रही है, मेरी car की वो जा रही है payments, and I'm happy. Yeah, they're like I have enough money कि मेरे सारे bills पे हो रहे हैं, मुझे अपने बच्चों के लिए सेविंग नहीं करनी, वो खुद कर लेंगे.
Yeah. तो they're having fun, they're chilling. हाँ, और Yeah, फिर वो 5 बजे बिल्कुल चले आते हैं yeah. और किसी पार्टियों पे बैठे होते हैं या बीच पे चले आते हैं, मैं सिर्फ उनकी स्टोरीज देख रहा होता हूँ. स्टोरीज क्यों देखते हो, आप काम करो. Yeah, you need a break in between Yeah. always. तो ये कंटेंट क्रिएशन कहाँ से बीच में आई? सो फर्स्टली हम आपका पेज का नाम है विद एक्स्ट्रा फ्राइज. Yeah. पहले तो इसके पीछे आ जाते हैं ये नाम किस तरह सोचा और ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? तो ये तो खैर पेज तो बहुत पुराना ही था. It was my sister and me, we were like posting a lot of. खाते तो हमेशा कराची में, first of all कराची में है ही क्या, सिर्फ खाना. सही है. Started with कराची जब मेरी एजेंसी थी when I was doing Oman, तो मैंने एक added service डाली हुई थी कि I'm gonna promote on my page. कोई इतने followers थे नहीं, but it was something new. And it was just food content. Yeah. Okay. फिर fast forward I moved to Kingston. पेज बिल्कुल ही dead था, मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, हल्का फुल्का इधर उधर स्टोरीज लगाई. किंगस्टन में when the pandemic hit, तो हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उनने कहा कि we have lots of local brands that are struggling, or if you want to, this was a side thing, this was not the work study program. They're like, if you want to volunteer for your resume, we have all these brands that are looking for some added support. तो उसमें से एक बंदा था, he was from Lebanon. उसने कहा कि मेरे पास ना 4 franchises हैं, और मैं I can't offer you anything monetary because we are all suffering. हमारा सिर्फ business Uber Eats पे हो रहा है. So if you can come by and make some content, और जो भी होगा खाना तुम्हारा, ठीक है. मैं कहा यार चलो एक्स्ट्रा काम, अभी चिलिंग चल रही है, I don't want to risk going outside, मास वास. मैं कहा अच्छा ये बता तुम्हारे पास ब्रांड्स कौन से हैं? उसने कहा बीवर टेल्स, उसने कहा थाई एक्सप्रेस, उसने कहा कल्चर्स, और उसने कहा ऑरेंज जूलियस. मैं कहा डन डील, मैं आ रहा हूँ. And these are for the audience, these are like big brands in Canada. Yeah, big food these are chains. like you'll find them in every mall, you'll find them everywhere. Thai Express मुझे हमेशा से बहुत पसंद मुझे था. Beaver Tails पसंद है. That's और dessert. Beaver Tails is like a Canadian local, I would say, success story of some dessert. तो मैंने इसके साथ काम वाम किया, और तभी मैंने काफ़ी कंटेंट बनाना शुरू किया. तो उस टाइम पे other people in Kingston, they also started reaching out. उन्होंने कहा हमारा भी पेज प्रमोट करो, तो गिव अवेज वगैरह. अब Kingston was a small city, तो जितना Kingston has, को मैं कहता हूँ कि Kingston has a ceiling, and I had reached the ceiling क्योंकि मैंने जितने local brands हैं सबके साथ काम कर लिया. और थोड़ा आगे पीछे दिखा दिया, and nothing exciting. So, but that kind of started my journey. So when I moved to Toronto, this was like one of my objectives as well, कि my page can get a big boost because Toronto की market is huge. Like I used to come to Toronto for a weekend from Kingston, and मैं यहाँ पे सिर्फ surprise होता कि market कितनी बड़ी है, कितने events होते हैं, there's so much to cover. I was always fascinated by the city, and this was like a very, childhood dream. जब मैं first time आया था ना with my family कि I want to work and live in downtown Toronto. These buildings always fascinated me कि if you go to financial district for the first time, and you're coming from a city like Karachi, और मैं बीच में पहले न्यूयॉर्क भी नहीं गया था. न्यूयॉर्क ने काफ़ी मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया. बट when I came here, like BMO की बिल्डिंग देखना, वो पूरा एरिया, स्कोशिया बैंक, those lights, it kind of got into me कि किसी दिन मैं चाहता हूँ कि मैं रात के 10 बजे वहाँ काम कर रहा हूँ. 10 बजे नहीं, बट मुझे सब कहते थे काम कर रहा हूँ 10 बजे. सब कहते कि जो भी EY डिलॉयट में वो 10 बजे तक काम करते हैं. तो मैं कहा ठीक है, I want to work and live in. बाहर से fascinating life है, अंदर सब रो रहे हैं. बाहर भी रो ही रहे हैं अब तो then when I came to Toronto, आहिस्ता ब्रांड के साथ काम किया, तो उसे इवेंट्स वगैरह काम किए. The best videos that I've not made, but the best reach that I've always gotten is showing the real life of Toronto. और उसमें ये है कि if you see a lot of bloggers right now, they don't live in downtown. They come to downtown, film the whole day, and then they go back. So they don't know the day-to-day life. अब मैं कभी कभार दिखाता हूँ कि TTC में किसी होमलेस बंदे ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया. मैंने वो वीडियो बना के लगा दी. That video will get so much reach. मुझे इतने इन सब के मैसेजेस आएंगे. Toronto culture, Toronto only, Nard City, curiosity to do Toronto, can we reshare? So that kind of kept giving me publicity. And then another thing that I didn't talk about was कि जब मैं Kingston में था, तो my PR card had expired. PR card renewal पर जा चुका था. उस time RSCC, I think even right now it's pretty slow. तो अब मैंने citizenship भी एलिजिबल हो गया, तो मैंने वो भी अप्लाई कर दी.
अब दोनों चीज़ें अप्लाई की हुई हैं, दोनों चीज़ें अटकी हुई हैं, तो दैट मीन्स कैन आई कांट गो आउट ऑफ द कंट्री। तो मैं कहा मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं कहा चलो लेट्स एक्सप्लोर कनाडा। तो क्यूबेक तो मैं काफ़ी दफ़ा गया था क्योंकि पास में था। वैंकूवर, कैलगरी, वो सब मैंने किया। जब मैं टोरंटो आया तो इट वाज द सेम सिचुएशन, कार्ड वार्ड था नहीं। तो मैं कहा मैं क्या करूँ। अब उस टाइम पे दिस इज़ अ टोटली सेपरेट सब्जेक्ट विच आई एम वेरी इमोशनल अबाउट, कि कनाडा की मोनोपोली बहुत ज़्यादा है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एयरलाइन मोनोपोली उस टाइम पे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी एयर कनाडा, वेस्टजेट की। दे वर चीप एयरलाइंस लाइक स्वूप, लिंक्स, फ्लेयर तो अभी भी है। फ्लेयर पे ही मैक्सिको गया था। अच्छा, okay. तो लिंक्स एयरलाइन ने ना, लिंक्स वाज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग इन कनाडा। ओके। लिंक्स ने कहा कि हैलीफैक्स फ्लाइट जा रही है, और मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि हैलीफैक्स चलना है, वहाँ पे जो है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड भी पास में और न्यू ब्रंसविक भी साथ में, तीनों प्रोविंस हो जाएंगे। अब मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ जाता था, वो पहले बीच में ऑटोवा काम करता था, तो वो भी साथ ही। ऑटोवा से आई यूज्ड टू फ्लाई प्रीटी चिल एयरपोर्ट। पियर्सन से तो बहुत बेहतर था वो, टू बी ऑनेस्ट। बट एनीवे, तो वो 3 प्रोविंसेस भी कर लिए। इसकी विनीपेग और सस्कैचुअन की भी सस्ती सस्ती फ्लाइट्स मिल रही थी, वो भी कर लिया। सो आई वाज एट 9 आउट ऑफ 10 प्रोविंसेस। मैं कहा 3 टेरिटरीज हैं, वहाँ तो जाना बहुत मुश्किल है, यूकॉन वगैरह। तो देन आई टुक अ फ्लाइट टू न्यूफाउंडलैंड, सेंट जॉन। अब जितनी ये जगह है ना, हैलिफैक्स, सेंट जॉन्स और सस्कैचुअन, विनीपेग, even I'll ask you, how much content have you seen of those places? कुछ भी नहीं। Exactly. And I had this unique thing कि मेरे पास सबका content था मेरे फ़ोन में। अब मैंने वो जब पोस्ट करना शुरू हुआ, तो that gave me a big boost क्योंकि nobody had that content. It was very unique. तो that gave me a lot of boost. जो टोरंटो के अंदर हो रहा है वो I started posting. तो eventually that gave me a strong base. And people were coming to my page to see के what's nice. They started recognizing you. वैसे आपका face होता है या is it just the video? I do post my face but not that many times. Okay. जब मैं लगाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि लोग अनफॉलो कर देते हैं। इतना खूबसूरत चेहरा है आपका, माशाल्लाह। आपके चेहरे पे इतना you नूर know है। you know the name with extra fries, for the longest time people thought it's some white girl just running the page, and eventually once I posted more of me, people were kind of disappointed. वैसे why with extra fries? So it was just like कि fries से पसंद है बहुत। एक ताल्लुक है हमेशा से, हमेशा देख Yeah. पेट बता रहा है। और जब भी खाना ऑर्डर करते थे तो मैं बोलता था कि अच्छा चलो बीफ बर्गर विद सम एक्स्ट्रा फ्राइज, कि फ्राइज एक्स्ट्रा लेके आना। सही है। तो वो करते करते बस वो नाम कुछ सोच में नहीं आता कि डाल दिया सी। Do you intend to expand this, या अभी ये है कि obviously with your full time job क्या चल रहा है तो चल रहा है, अभी जिस तरह चला रहा हूँ कि मैनेज नहीं हो पाता, कि क्या प्लान्स हैं अभी इसको लेके आगे? I'll give you a few examples. I do that when I want to do it. I don't do it when brands कहते हैं कि आप हम I'll do it on my own comfort. अब early in the summer मुझे नायग्रा फॉल्स जाना था। मैंने नायग्रा फॉल्स की जो टूरिज्म है उनको मैसेज किया, मैं कहा कि आई वांट टू कम एंड व्हाट कैन यू ऑफर मी। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो नायग्रा का एडवेंचर पास है वो हम आपको दे देते हैं, उसमें 5-6 एक्टिविटीज़ हैं, आप सबको कवर करना है। मैं कहा ठीक है डन। मैंने वो सब कुछ कवर किया। माई फेवरेट कोलैबोरेशन ऑफ ऑल टाइम, बिली बिशप एयरपोर्ट पे देयर इज अ हेलीकॉप्टर टूर, हेली टूर। वो मैं 4 दफ़ा कर चुका हूँ। वो मेरा दोस्त बन गया है, ठीक है। एंड दैट इज़ अ कोलैबोरेशन जो किसी और फूड ब्लॉगर के पास नहीं है। सो एक हेलीकॉप्टर का फूड ब्लॉगर से क्या ताल्लुक है? सो आई स्टार्टेड एज अ फूड ब्लॉगर, इवेंचुअली देयर वाज एट वन पॉइंट के आई वाज ऑलमोस्ट 100 kgs, एंड द थिंग वाज कि मैं लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग टू स्कारब्रो, अब आई डोंट गो टू स्कारब्रो दैट ऑफन, तो मेरे माइंड में था कि एक ही ट्रिप पे आई एम गोना कवर 2-3 ब्रांड्स। अब मैं जा रहा हूँ ब्रांड के पास, तो वो कभी होता है कि शेफ़ खुद खाना बनाता है, तो उसको मैं इतना मना नहीं कर सकता। वो कहता है ट्राई करो, मैंने ट्राई वाई किया, डिज़र्ट खाया, ठीक है। अब मैं दूसरे ब्रांड पे गया, वहाँ पे उनने भी बहुत ज़्यादा खाना दिया, तो वो थोड़ा सा ट्राई वाई किया। फ्रेंड भी साथ होते हैं, हमने एंड में डिवाइड किया, घर चले गए। अब मेरे माइंड में किया इतना अच्छा खाना फ्रिज में रखा हुआ है, ज़ाया तो नहीं होना चाहिए, मिडनाइट फिर से खाया, नेक्स्ट डे फिर से खाया, तो इट वाज गेटिंग टू मच। आई वाज गेनिंग नॉन स्टॉप, ठीक है। मुझे कपड़े फिट नहीं आते ना जब, तो इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग। और मैं कहा मैं लार्ज एक्सेल पे तो नहीं जाऊंगा। लाइफ ऑफ अ फूड ब्लॉगर। या दिस इज द इनसाइड जो कोई बताता नहीं है। तो एट दैट पॉइंट आई मेड अ डिसीजन कि आई एम गोना ट्राई टू डिविएट अवे फ्रॉम फूड ब्लॉगिंग, और इस साल मैंने किया है काफ़ी, एंड आई एम गोना डू मोर एक्सपीरियंसेस। तो अब आई स्टार्टेड गोइंग टू ऑल दी स्मॉल टाउन्स, क्योंकि रोड ट्रिप्स का तो शौक है ही, और बचपन से ही वहाँ कुछ था नहीं कराची में, सवाए हैदराबाद के, यहाँ पे दिस सो मच।
तो when I started posting videos about Kingston में तो मैं रहा ही था, तो वो सब सही। content था मेरे पास. Peterborough जैसा share and Windsor and all these places not that famous. I started posting content about that, and that got a lot of attraction as well. So eventually वो किया, and then I kind of have transitioned my page into experiences. तो helicopter मुझे वो वाला मिला. There's a plane that flies from Burlington all over Niagara. वो मैंने किया. तो And you just shoot a video for them and put it on your page. yeah. Okay, And yeah, interesting. or so there is this boat ride in Niagara that basically Niagara Falls यहाँ पे वो काफी आगे जो उसका river है. So that river has a lot of waves. और ये speed boat जाती है waves के अंदर बाहर अच्छा, and you okay. get a whole splash. So I did that collaboration. That was a lot of fun. I had to reinvest in a lot of gadgets. So मैंने वो Ray-Ban के glasses लिए. Okay. That records everything. Meta, So that kind of adds a different layer. उन glasses की वजह से I got a lot of new collaborations because I said, okay, I have a point of view angle, which a lot of bloggers, I don't think a lot of bloggers have those glasses. Now So maybe, but उस वक्त शायद. now अब शायद सबके पास आना शुरू हो जाए. And glasses I wanted for the longest time. Only in January when finally my insurance के वो 2 साल पूरे हो गए, so I had some money from it. So मैंने उसके through लिए. But they've been a big help. So once I got into experiences, then food events जैसे Taste of India होता है, they always call me. Taste of Middle East last year किया था. And these are all events where you can always monetize because they have a big budget, so they give you some money. Baki everything is more like a gifted collaboration, and I mean some of them are like I'm happy with it. There are lots of agencies जहाँ पे I'm signed up. So agencies are like कि ये activity है. Agencies make the money and they give you the opportunity. So there's one agency जिसने मुझे अभी कहा है कि Niagara USA में opportunity है. There was a radio company that I did an ad for. Oh, I didn't know कि वो इतना उसको ad को boost करेंगे. Like a lot of my friends told me, oh, we're seeing you on another page. And you were also at the Weekend concert, and your reel got 2 million views or something. Yeah. So अच्छा, the whole content creation game का जो सबसे number one rule है ना, वो है first mover advantage. अब because I live like 5-6 minutes की walk from Rogers Stadium, I knew कि मैं किसी के event पे गया था पहले, Coldplay के event पे गया था. तो Coldplay के event, as you know, people didn't like the stadium. Yes. And I just came on that bandwagon. But मेरे post होने से पहले, and there are so many events that happen in Nathan Phillips का भी fireworks होते हैं. I've lost the first mover advantage multiple times. So I know कि my content might be better, but किसी ने पहले post कर दिया, उसकी reach आ गई, सबने share कर दिया. अब second time कोई नहीं करेगा. My opportunity was gone. तो जैसे ही weekend का concert खत्म हुआ ना, I came in and came home जल्दी से और I posted the video. उसी वक्त. हाँ. Actually चलते हुए I was editing. अब क्योंकि मैंने Ray-Ban की glasses भी लगाए थे, तो speaker सब चल रहा था system. तो मैंने edit करते करते जैसे ही घर पे वाईफाई से कनेक्ट हुआ, मैंने बस डाल दिया. And do you think कि आप concert you went to a concert, आप enjoy करने जाते हो, but do you think कि जब आप ये सोच के जाते हो यार मुझे ये content बनाना है, तो फिर आप इतना enjoy नहीं कर सकते and you're just focusing on that? So before even when I've been to, मुझे concerts का बहुत शौक है. मैं रहता भी Rogers Theatre के पास हूँ, तो it's easier access. तो मुझे हमेशा से कि if a top performer is coming, I want to go. और चाहे वो मुझे जैसे Ed Sheeran की जो मेरी टिकट थी, वो Rogers Theatre की सबसे टॉप वाली थी कि मैं ऑलमोस्ट बाहर था स्टेडियम के, बट मैं कहा कि आई वांट टू बी देयर. तो वीडियो तो मैं वैसे भी बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड्स को कभी दिखानी है, कभी घर वालों को दिखानी है, कभी स्टोरीज लगानी है. तो कंटेंट तो वैसे भी बन ही रहा है, ठीक है. एंड अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल से कि ये if you go to a concert, you film a lot, you never go back and see those videos, ठीक है. और मेरा वैसे memory issues भी बहुत हमेशा रहते हैं. That is true. But concerts like The Weeknd और Coldplay या कोई बहुत अच्छा performer हो, जैसे अभी फारिस शफी आया था, these videos I rewatch multiple times क्योंकि I travel काफी, तो मैं बस कभी प्लेन में कुछ करने को नहीं होता, तो मैं वही देखता हूँ. Plane is the best place कि आप अपनी स्टोरेज खाली करो. यार मैं हमेशा सोचता हूँ, बट समटाइम्स आई गेट सो स्लीपी है, मैं कहा यार लाइट भी कम है ये वो. I finally got iCloud after like the longest time. मैं ले $5 मुझसे. जरूरी हो गया. Yeah, but
तो वीकेंड पे ये था कि I knew कि you know if I get the first move advantage it's gonna do well. I didn't know that it's gonna do that well कि वो weekend की feed पे weekend खुद share, because I didn't even tag the weekend because you know it wasn't something I was planning to do. I was just sharing it. मैंने अभी कुछ और भी, so there was this Taste of India event जिसमें प्रीति जिंटा आई थी, Okay. and Preeti Zinta was like right in front of me. मैंने film किया, and Taste of India, because a lot of Indians were there, I knew that those Indians, they don't live in downtown. ठीक है? They traveled. Okay. They travel from Brampton or कहीं भी, and I know some of them personally जो on the spot बना लेते हैं content, but most of them they go back home Edit it. because you have multiple clips. तो प्रीति जिंदा वाली जो मैंने रील बनाई थी, that was मैंने वहीं नेथन फिलिप स्क्वायर पे पीछे बैठ के मैंने वहीं पे बना के डाल दी. And by the time I came home in like 2 hours, that reach had already touched 100K. And it was just the Preeti Zinta effect. The whole video, I think it's at 650 or kuch. Another example, TIFF hota hai har saal. That's the Toronto International Film Festival. And it's also near Rogers Centre. It's in the same entertainment district. So, I don't know how, I think through RBC, I got tickets to the red carpet. ठीक है. And I specifically chose the day जिसमें सिडनी स्वीनी को आना था. सिडनी स्वीनी वो आजकल ऐसी बहुत वायरल हुई है सिडनी because of the American स्वीनी, Eagle ad. एना आई थी, वनेसा किर्बी जो अभी फैंटास्टिक फोर में, जूड लॉ, और वो मूवी अभी आएगी ईडन, तो मैं उसके प्रीमियर पे गया. सो इन द प्रीमियर बेसिकली वेयर यूर सिटिंग, इतना डिस्टेंस था when Sydney Sweeney walked from here. So the funny thing that happened at that event was कि there was a girl जो मेरे आगे के आगे थी, and उसकी अम्मी थी, and उसने कुछ चीखा कि my name is also Sydney, and I was standing behind her, और मेरा कैमरा हमेशा रिकॉर्डिंग कर रहा होता है. तो सिडनी ने वो देखा, वो भागते हुए आई उसकी तरफ. So that video मैंने क्योंकि I live nearby, मैंने उस घर जाके लगाई. I think I got a message from every page कि we want to reshare, and that video like जिसने भी reshare की, मैं कहा अच्छा add me as a collaborator so that मेरे भी page link हो जाए. Got like 300-400K on each video. So that did really well, and you know this is all about first mover advantage. ये वाली थी opportunity कि बहुत लोगों के पास नहीं थी, food bloggers जो भी हैं, but यही है कि as a food, not just a food blogger, as a content creator, you have to find all the opportunities, and उसके लिए you always have to be recording. मेरी इतनी videos हैं कि TTC में कोई homeless आगे street car को चलने नहीं दे रहा, वो video में बहुत viral हुई. एक बंदा जो है रोड पे लेटा हुआ है किंग स्ट्रीट पे, वो ट्रैफिक रुका हुआ है, वो वीडियो बहुत वायरल हुई. And always recording, do you always record through your glasses now or या phone ही हाथ में इस तरह पकड़? तो glasses are like more of a recent thing. इस साल आए. तो phone बस पकड़ा होता है इस तरह? तो ग्लासेस में इतना वैसे पहनता भी नहीं हूँ क्योंकि दे आर बिट हैवी, तो मुझे वो लाइट ग्लासेस है. और फोन इज लाइक यू नो बस कुछ हुआ, यू हैव टू बी लाइक यू नो बिल्कुल बेशरम, कुछ भी हो रहा हो, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, आप फोन लगा के वीडियो बनाओ. ये पाकिस्तान में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ये कर लो, बट अनफॉर्चुनेट चीज भी आजकल बहुत हो गई है. लाइक देयर बीन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज या मैंने रिकॉर्ड नहीं किया एंड रिग्रेट किया, एंड आई रिग्रेटेड. मैं कहा अभी मिलियन व्यूज आ चुके होते. So do you think ये व्यूज की गेम ने सबको पागल कर दिया इन अ वे कि यार बस व्यूज चाहिए और अब बस कोई कुछ भी कर रहा है? तो अभी पता है इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन है कि यू कैन हाइड द व्यूज फ्रॉम ऑल योर वीडियोस, और एक ब्लॉगर ने किया हुआ था, बट देन आई वाज लाइक यू नो इफ आई एम पिचिंग क्लाइंट्स मैं उनको क्या बोलूं. बट यू नो इट्स अ रैट रेस, और समटाइम्स यू नो not me personally because this is like my side gig, but if this was my full time and I was losing opportunities or the first mover advantage, I would get a bit sad कि you know it affects you. I know a lot of bloggers जिनको ये बहुत affect करता है कि you know I didn't get that many views और मुझे वो client नहीं मिले जिसको client मिलने हैं. So it kind of plays with your mental health, but you have to be strong. फिर हम जाते हैं content creation में, तो obviously good luck to you, but you do a lot of community work. Yeah. So what is that? So this is something that I started in Karachi. I was part of that Rotary chapter. तो उसने मुझे काफ़ी project ideas दिए, project support दिया, और ने कहा कि and you know Karachi even till this date has a lot of need for the community support. So started pretty easy, you know, clothing donation drives, water donation drives. Karachi में heat waves काफ़ी आते हैं तो उसमें काफ़ी help out की, and
once I came here, यहाँ पे I felt like people didn't have the time to go and help out, और यहाँ ज़्यादा help की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि there's so many government fundings available. तो it was more like यार we write a check and we just give it to some organization. तो उसमें मुझे ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता था कि सब कहते यार हमसे पैसे ले लो, हम खुद आके इतना वो नहीं कर सकते. तो यहाँ पे इतना वो था नहीं. तो what I did was कि I started fundraising here to do projects back in Pakistan. पाकिस्तान में उस टाइम पे ट्रेंड भी था कि सब वाटर वेल्स बना रहे थे. तो मैं कहा why don't I do it? This was COVID time as well. COVID में as you know a lot of people were suffering. तो उनको मील पैकेजेस बनाए, वो सब किए. कनाडा में फंड रेजिंग की, आगे पीछे फंड रेजिंग की. जितने भी मेरा एम यही था कि जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं ना, उनकी मेरी सिर्फ ये अपील थी कि इफ़ यू गो आउट फॉर रेस्टोरेंट एंड यू स्पेंड $20 on a meal, this $20 can go a long way in Pakistan. पूरा फैमिली का खाना आ सकता है इसके अंदर. And then because of my work previously in Pakistan, I had all the vendors and connections वहाँ पे. So eventually got lots of donations. There are a lot of projects in Pakistan. यहाँ पे भी किंगस्टन में काफ़ी नॉन प्रॉफिट्स थी, उनके साथ काफ़ी काम किया. टोरंटो आया, यहाँ तो और बड़ी नीड है. टोरंटो आई डिडंट नो एट दैट टाइम कि यहाँ पे भी थोड़ा सा कराची वाला हाल है इन सम प्लेसेस. होमलेसनेस तो है ही, बट यू नो सम प्लेसेस लाइक जेन एंड फिंच वगैरह, वहाँ पे पीपल डोंट हैव दैट मच मनी, तो दे नीड मील्स वगैरह काफ़ी चाहिए उनको क्लोथिंग वगैरह काफ़ी दे एक्सेप्ट. तो काफ़ी मैंने फिर जब स्टडी की तो बहुत ज़्यादा यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हेल्प आउट. सबके पास फंडिंग भी है बट सबको और भी ज़रूरत है क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है. फूड बैंक्स की इतनी डिमांड है यहाँ पे, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही यू नो विद इन द पास्ट 4-5 months डिमांड इज़ एवर ग्रोइंग. तो उसके लिए देन आई स्टार्टेड वर्किंग मोर. यहाँ का रोटरी चैप्टर मैंने ज्वाइन किया. इवेंचुअली दिस ईयर आई बिकेम प्रेसिडेंट उसका. तो वहाँ से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एक मैंने प्रोजेक्ट which I really like, Collision Conference, very big conference happens, tech conference every year. But बहुत साइड पे ना उसके कोने में there is a social impact section. यहाँ पे businesses, startups who are in the social impact space वो आते हैं. So there was this business from South Africa. उसने कहा कि अच्छा, उसने ना मुझे पहले ही बोल दिया कि where are you from? तो मैं कहा पाकिस्तान. तो उसने कहा कि similar in पाकिस्तान गाँव में जो बच्चे हैं वो अगर उनको पढ़ाई करनी है स्कूल वगैरह पे, तो अफ्रीका में मोर ऑफन इट्स लाइक अ वाइट बोर्ड, मतलब वाइट बोर्ड भी नहीं, ब्लैक बोर्ड विद अ चॉक, और बच्चे पत्थर वत्थर पे बैठे होते हैं ऊपर नीचे, बट वो सब पढ़ रहे होते हैं. मैं कहा पाकिस्तान में तो आई डोंट नो कि वो सिस्टम है या क्या सिस्टम है. तो उसने कहा कि उसके लिए आई मेड अ बैकपैक जिसको खोलो तो वो एक टेबल और चेयर बनता है, उसमें सोलर लाइट भी है. तो दैट रियली फैसिनेटेड मी. उसने मेरा पूरा मेरा जो पैशन था ना उसको रिवाइव कर दिया. तो अब मैं टोरंटो में था उस टाइम पे. तो मैं कहा अच्छा एक कितने का है? उसने कहा $1 is $400, बट इफ़ यू हैव अ कॉर्पोरेट हम उसको ना ब्रांड कर सकते हैं टू योर नीड्स एंड यू नो विल गिव यू अ टैक्स रिसीट एज वेल. तो मैं कहा अच्छा, एंड यू कैन सेंड मी पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. उसने कहा हाँ. तो मैंने यहाँ पे फंड रेजिंग स्टार्ट की. अब टोरंटो में एज यू नो हसल बसल सिटी है, ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं, किसी ने पैसे नहीं दिए. तो आई ऑलवेज न्यू कि स्मॉल सिटीज़ में ना पीपल हैव मनी एंड दे आर कंफर्टेबल, दे आर ऑलवेज विलिंग टू गिव बैक. मैंने किंगस्टन को रीच आउट किया. किंगस्टन से क्या रिस्पॉन्स मिला? किंगस्टन वहाँ के लोगों को, क्योंकि मैं वहाँ के रोटरी का भी पार्ट था. सही है. तो उनके रोटरी किंगस्टन ने कहा कि ओके ठीक है, हम तुम्हें वैसे भी जानते हैं, तुमने यहाँ भी काम किया है, विल गिव यू $500, तुम उनको भेजो एंड यू गेट 5 मेड. तो मैंने जब वो 5 बनाए ना पूरी रोटरी के ब्रांडिंग के साथ, क्लब ऑफ किंगस्टन, सो दैट काइंड ऑफ मेड अ होल चेन, एंड फिर काफ़ी लोगों ने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया. तो देन आई वाज लाइक यू नो हियर दे इज़ अ नीड, बट इट्स नॉट एज बिग ऑफ अ नीड जितना हम इम्पैक्ट अफ्रीका एशिया वहाँ कर सकते हैं. तो that's how for someone who wants to join your club or your company, Rotary ना बोला आपने, that's the name, ठीक है. How can they join? It's pretty easy, and now पहले तो ऐसे barriers थे. Even in Rotary in Pakistan, there's a few barriers. Initially, it was like, oh, it's for the elite वगैरह to give back. But now if they've made it pretty simple. You message them on their website, या email, या कहीं ना कहीं. So this company, it's in Pakistan, it's in Canada, it's everywhere in the world. So it was founded. Rotary International was founded in Chicago.
आई थिंक नाउ इट्स ओवर 140 कंट्रीज, हर जगह की डिस्ट्रिक्ट है. एशिया में बहुत एक्टिव है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है. इंडिया में तो दे आर डूइंग प्रोजेक्ट्स नॉन And it's all स्टॉप. about helping people and creating an impact. It's all about giving back, community service, but it has now focused more on professional development, networking as well. उसकी conference अभी कैलगरी में हुई थी. People from everywhere they came on board. रोटरी में जब मैं पाकिस्तान में था तो रोटरी ने एक राहत फ़तेह अली खान का कॉन्सर्ट किया था एज अ फंड रेजर गोल्फ क्लब में. आई वाज पार्ट ऑफ द टीम. तो इट गिव्स यू एक्सेस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. राहत मेरे सामने था. राहत के जो चेक्स वगैरह थे वो भी मेरे थ्रू वगैरह सब गए थे. स्पॉन्सर्स कितने नैंडोस पैसे लेते हैं वैसे सर? उस टाइम पे 2015-16 में आई थिंक ही टुक 40 लाख. अब तो डबल ट्रिपल हो गए एक होंगे 20 का चेक पहले गया था, एक 20 का बाद में. आई डोंट नो कि इसके साउंड वगैरह के एक्स्ट्रा थे या नहीं, बट मैं खुद अपनी गाड़ी में नैंडोस के साथ एस्प्रेसो यहाँ पे हमारे टिकट बिक रहे थे. स्पॉन्सर सब ने मुझे 7-8 लाख वो दिए रुपीस कैश कराची जैसे शहर में. ओह मैं तो जितनी सूरत आती थी सब पढ़ते पढ़ते ऑफिस वापस आया. बस पहुंच जाऊँ, कोई देखे भी नहीं मेरी गाड़ी को. तो it was a whole experience. और इसमें there are lots of funny stories. If you want me, मैं तो सुनाता हूँ. एक बता दें कोई सबसे इंटरेस्टिंग. सबसे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इस कॉन्सर्ट का. तो हम टिकट्स बेच रहे थे. तो कुछ जगहों पे टिकट्स पे मेरा नाम नंबर लिखा होता. मैं कहा ठीक है डाल दो. द गाइस जो वो थे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, उन्होंने कहा हर टिकट पे यू गेट अ 10% कट एज वेल. एक्चुअली उससे मैंने उस कॉन्सर्ट के काफ़ी पैसे भी कमाए थे. मैंने एक्सबॉक्स खरीदा था उससे. तो एक दिन मुझे फ़ोन आया और मुझे मैंने कहा अननोन नंबर, मेरे पास कुछ वो था भी नहीं. उसकी कोई ऐप थी उस टाइम पे जो मुझे सब कहते भी थे जिससे पता चल रहा था कि नाम क्या. मैंने फ़ोन उठाया तो उसने कहा जी मुस्तफ़ा भाई. मैं कहा जी. उन्होंने कहा कि हमने देखा कि आप कॉन्सर्ट करवा रहे हो. मैं कहा हाँ. तो उन्होंने कहा आप कॉन्सर्ट हमारे इलाके में करा रहे हो, आपने हमारी खैरियत नहीं पूछी. तो मैं कहा अच्छा आप कौन? उसने कहा मैं ये दरख्श खाने का SHO बात कर रहा हूँ. मैं कहा अच्छा तो क्या खिदमत कर सकता हूं क्या किया जाए. मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था उस टाइम पे. आई ऑलवेज वांटेड टू बी अवे फ्रॉम एवरीथिंग. तो उसने कहा कि आप ना हमारी टीम को कांटेक्ट किया आपकी टीम ने और वो वहाँ होगी, लेकिन आपने कोई हमारी वो खातिर वो नहीं की. तो मैं कहा अच्छा रुको, मैं तो सिर्फ वो वर्कर हूँ. मैं तो यहाँ पे मैं तो पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी में. मैं तो ऐसे सिर्फ इंटर्नशिप कर रहा हूँ. तो उन्होंने कहा ठीक है आपका जो भी आप उनसे बात कर लें. अब मैंने उनको बोला कि मैं ऑफिस में था उस टाइम पे कि भाई ये सीन है. तो उन्होंने कहा अच्छा तुम उसके पास जाओ और ना ये 10 जनरल पासिस दे आओ. मैं कहा दे आओ मतलब मैं थाने जाऊँ? तो उन्होंने कहा हाँ इधर ये तुम्हारे घर के रास्ते में ही है. तो मैं कहा अच्छा ठीक है मैं दे दूँगा. अब मैं उसको बता दिया कि मैं आ रहा हूँ. तो अब वो काफ़ी बिजी एरिया, मुझे पता नहीं था कि थाना इतना बिजी होता है. मैं वहाँ गया, मैंने गाड़ी पार्क की तो मुझे दूर से आवाज़ आई जी मुस्तफ़ा भाई इधर. मैं कहा तो इसको पहले ही पता है कि मैं कौन हूँ. मैं वहाँ गया, उसके मैं रूम में गया. बहुत ही अजीब सा उसका रूम, आधा उसका बिस्तर, वो चारपाई लगी हुई. SHO हाँ ओके. और उसने अच्छा मैं चाय भी नहीं पीता था उस टाइम पे, अभी भी कम ही पीता हूँ. तो उसने चाय भी रख दी ज़बरदस्ती. मैंने चाय पी के भाई नर्वस इतना था मैं. अब मैंने उसको ना टिकट्स दे दिया. मैं कहा मेरा काम हो गया. आई एम जस्ट मैसेंजर. तो उसने कहा मुस्तफ़ा आपने तो हमारी बेइज्जती कर दी. अब मैं वहाँ और टेंशन में. तो उसने कहा कि मुझे पासेस देने अपने, क्या उसने मुझे सुपीरियर को देने, जितने हमारे सुपीरियर थे उनको देने, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जनरल पासेस दूँ. तो मैं कहा देखा मैं तो आपको से मैसेज आगे किया था, मुझे वहाँ से जो जवाब है मैंने कहा. तो कहा अच्छा आप ये पासेस लें वापस और मुझे आप वहाँ जाके बताएं कि आप क्या कर सकते हैं. ये तो सिर्फ हमारे लिए हैं, उनको क्या देंगे. अच्छा फिर मैं नेक्स्ट डे मैंने उसको बोला. उसने कहा अच्छा ऐसा करो कि ये 2-3 गोल्ड के दे दो और 2 प्रीमियम दे दो. हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते. बाकी कुछ बोले तो बोलना कि हम तुम्हारे उससे बात कर लेंगे डायरेक्ट. अच्छा मैं गया तो उस दिन कोई बेचारे अंकल आए हुए थे, कहते कि मेरा बेटा गायब है. ठीक है मैं थाने गया, वो उनसे बात कर रही थी. उसने मुझे देखा, अंकल को इग्नोर. क्या अंकल का केस चल रहा है, मुस्तफ़ा भाई क्या है हमारे लिए आओ अब. अच्छा अब मुझे ना किसी थाने के मतलब खुला हुआ है,
लॉक वहां पे लेके जाके ना वैसे कह रहे हैं यहाँ बात करते हैं, मेरे ऑफिस में कोई बैठा हुआ है लॉकअप में। हाँ, अब वो उसने लॉक नहीं किया बट अंदर हाँ। अब मैं फुल, मैं कहा चलो आज तो मैं रात इधर ही गुजार रहा हूँ। तो मैंने पास दे दिया उसको, उसने कहा चले ये इतना अच्छा नहीं है बट ठीक है इससे गुजारा हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा बाकी हम इवेंट के दिन ही देख लेंगे। मैं कहा there's nothing more I can do। कितनी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है वैसे अगर देखा अच्छा, जाए दिस तो। इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। मैं वो करके चला गया। कम्स इवेंट डे, इनका काम था गेट को संभालना। आधे कॉन्सर्ट पे इनकी पुलिस वाले खुद अंदर आ गए कॉन्सर्ट एंजॉय करने, हमारी इतनी गेट क्रैशिंग हुई। अब मैं क्या गोल्फ क्लब जैसी एरिया में इतनी गेट क्रैशिंग हो रही है एनीवे। अब वहाँ पे ये जो पासेस दिए थे ना हमने, उसमें आई कुड टेल देयर वर सम पीपल जो इसके थ्रू आए। वो आए और मुझे ना फ़ोन आ रहा है कि अब हमारी पूरी टीम थी, सब जैबिस के बॉयज़ थे जो काम वहाँ कर रहे थे एज अ क्राउड हैंडलिंग वाले। तो अब जब मैंने अपनी फैमिली को पहले ही बोल दिया था कि इवन तो मेरे पास पासेस हैं, आप लोग को मैं नहीं बुला रहा क्योंकि आई नो कि इट्स गोना बी कंप्लीट केओस, क्योंकि आई एम इन चार्ज ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशन और मुझे पता है कि हमारे कितने लूप होल्स हैं हर जगह एंड देयर वाजंट इनफ टाइम टू गेट एवरीथिंग। तो वहाँ पे हमने जो प्रीमियम थे वो ओवरसेल किए हुए थे एंड ओवरसेल के बाद भी सम हाई रैंक पीपल केम इन एंड देयर लाइक कि कौन है यहाँ पे इंचार्ज, ठीक है। अब एक जो था जैबिस का, उसने कहा कि आप मुस्वा से बात कर लें। मैं आया वहाँ पे और कहा देखो मुस्वा, मेरे पास टिकट ये, मुझे वहाँ सोफ़ा नज़र आ रहा है स्टेज के सामने, मैं वहाँ जाके बैठ रहा हूँ, ठीक है। और पता नहीं कोई रैंडम लड़की के साथ आए हुए थे, ठीक है। मैं वहाँ जाकर बैठ रहा हूँ, जो मुझे रोक सकता है उसको अभी बुला लो ताकि हम टाइम ज़ाया ना करें और कॉन्सर्ट एंजॉय करें। और मुझे वैसे कोई नहीं रोक सकता। मैं कहा आप जाकर बैठ, कॉन्फिडेंस था उनमें। मैंने भी कहा आप जाकर बैठ आई डोंट वांट टू कॉज एनी। अब ऐसे ऐसे करके ना देयर वर मल्टीपल पीपल, सही है। और हमने पहले ही ओवरसेल किए हैं और मल्टीपल लोग भी आ गए, सब सोफे फुल। अब जो लोग आ रहे हैं जिनने टिकट्स लिए, देयर आल्सो सम यू नो बिग शॉट क्योंकि दे हैव पेड द मनी। अब वो अलग उनके साथ चल रहा है कि भाई हम कहाँ बैठे हैं, हमने पैसे दिए हैं और अगर हम लेट आए तो क्या हुआ। तो यू हैव टू इम्प्रोवाइज। अब लाइफ का जो मेरा वो है ना एडवाइस टू एवरीवन इन लाइक 2 seconds, इट्स लाइक यू हैव टू इम्प्रोवाइज एवरी सिचुएशन। जितना भी प्लान कर लो इम्प्रोवाइज करना है हर चीज़। उस वक्त हमने उसको बोला कि भाई सामने जो है शादी हॉल है, उनकी शादी देर से स्टार्ट होने वाली है, वैसे भी आपके पास जितने सोफे हैं यहाँ ले आए, हम आपको दे देंगे और हम आपको एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे जितना भी है। वो गए, डिफरेंट स्टाइल ऑफ सोफे आए, हमने सब सजाए, लोगों को बिठाया, कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ। राहत की हाइट बहुत छोटी थी, पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कितना छोटा सा है। और पीछे उसका कोई ग्रीन रूम था, वो वहाँ गया। एवरीथिंग वेंट ओकेश ऑन आवर एंड बट एवरीबडी एल्स दे एंजॉयड इट। सही। वो ख़त्म हुआ, एवरीबडी डिस्पर्स्ड एंड यू नो आई वाज लाइक this was my last event that I'm ever gonna do. It wasn't worth the pressure or it was a learning experience, but I was like, this is just a tip of the problems that are in event management. यहाँ पे तो चलो I had support, हर चीज़ अगर मैं खुद करूँ तो there's nothing. But yeah, it's amazing. एक तो आप obviously the experience that you have plus the impact that you create helping people, because मुझे पेश लगता है कि आप अगर किसी की हेल्प करो ना तो सब उससे ज़्यादा खुशी मिलती नहीं है किसी की हेल्प करके, to be very honest. मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ अभी रिसेंटली। Now, my role at my job now is to attract people towards the trucking and construction industry, और जितने लोग हैं यहाँ पे जिनके पास लाइसेंस है ट्रक का, AZ DZ लाइसेंस होता है, G के बाद आता है DZ और फिर आता है AZ। DZ में यू कैन ड्राइव यू नो ये वैन्स वगैरह, छोटे ट्रक्स, रिसाइकलिंग वगैरह। AZ में वो जो बड़े ट्रक जो पूरा हाईवे को जैम किया हुआ था वो चलाते हैं। अब यहाँ पे टोरंटो में और पूरे GTA में इतने लोगों के पास लाइसेंस है बट जॉब नहीं है और उनको कनेक्शन नहीं मिल रहे। तो मैंने अपने ऑफिस में एक दिन सजेस्ट किया कि जितनी ये यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको हम लेके चलते हैं फैसिलिटी टूर करने। उनको एक्सपोजर भी मिल जाएगा, हमारा KPI भी टच होगा कि हमने नए लोगों को अट्रैक्ट किया। अब मैंने यूथ के लिए बनाया इवेंट पेज वगैरह, और मैंने एक ट्रक स्कूल को भी दे दिया कि देखो तुम्हारे पास कोई यूथ वगैरह है। अब दरादर रजिस्ट्रेशन आए जा रही है। मैं कहा ये लोग कौन आ रहे हैं, तो पता चला कि जिनके पास लाइसेंसेस है, क्योंकि ट्रक ट्रेनिंग स्कूल कितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं और जॉब नहीं मिल रही उनको। तो वो जब आना शुरू हुए तो मैंने और सबको इनवाइट किया कि मैं कहा सब आओ। तो जब वो सब आए
और इनने इवेंट अटेंड किया, उनने द कंपनीज नेम इज GFL, देखा होगा ग्रीन ट्रक्स होते हैं. अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने कभी पिछले 6 साल में कभी सोचा नहीं कि मैंने अपना जो भी कचरा रिसाइकलिंग बांधा डाल दिया डब्बे में, इन अ कॉन्डो बिल्डिंग डाल दिया, वो नीचे गिरा और फिर क्या हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा. फिर मैंने पूरा जब स्टडी की कि दिस वाज पार्ट ऑफ द ट्रकिंग इंडस्ट्री, कि वो आता है रिसाइकलिंग वाला उठाता है अपने उसमें डालता है, एंड दैट्स अ वेरी lucrative जॉब विच आई नेवर न्यू अबाउट. ओके. एंड उसकी कुछ 3-4 ही कंपनीज हैं, दे आर लोडेड. इफ़ यू गेट इनटू दैट कंपनी योर लाइफ इज़ मेड. तो मैंने जब इंडस्ट्री ट्रिप की इनके इटोबिको ब्रांच में, और मल्टीपल पीपल केम इन, एंड देन वंस दे स्टार्ट अप्लाइंग, उनका रोड टेस्ट हुआ, सब टेस्ट, व्हेन दे गॉट अ जॉब, तो जब उनने मुझे ईमेल की ना कि थैंक यू मुस्तफा फॉर द इवेंट, आई स्टार्ट टुमारो एट 6 o'clock, वो जो फीलिंग थी ना, The happiness. दैट्स लाइक अबव एवरीथिंग के योर एक्सपर्टीज हेल्प समबडी मेक अ लाइफ. और हमारी कंपनी में, बिकॉज वी गेट so many startups from overseas, it's all very transactional. कि चलो if you're making $1 million, हमने आपको introduce किया, it's a new market, you make $2 million now. But these people, they're like struggling to make ends meet. Yeah. And because of this opportunity, now they can feed their family, they can, go into the next step, they can, get a bigger space. और आपके लिए दुआएं. That's very हाँ, important. उनकी obviously. दुआओं की वजह से तो अभी मैं यहाँ हूँ, Yeah. इस पॉडकास्ट पे मुझे opportunity मिली. But no, यार, keep doing good Yeah. work और आप हमें motivate कर रहे हैं. इससे I think we have exceeded the 1 hour 20 minute mark. पता नहीं चला. Wow. Or we'll get to the last segment now, which is the Q&A. If you remember, I put up an Insta story that Mr. Mustafa is coming, so please ask questions. So I have a few questions for you. What's the craziest marketing story you have ever seen in Pakistan, or the marketing stunt you have ever seen in Pakistan or Canada? In Canada, this is a thing that I'm trying to even replicate right now, and it's not the craziest thing, but I would say it's the most impactful one. So there's a fintech called WellSimple. WellSimple's become really famous. WellSimple actually started from मेरा office 3rd floor पे था, 325 Front Street पे, which is opposite the CN Tower. WellSimple started from the 4th floor, so they're a very local company. So उन्होंने कहा कि it's a digital age, हर चीज़ ऑनलाइन जा रही है, and everything, न्यूज़लेटर, ये वो. What they did was कि उनकी जितनी इंफॉर्मेशन उनको थी उनके पास, जो उनको बेचनी थी, उन्होंने एक न्यूज़पेपर बनाया, न्यूज़पेपर प्रिंट किया और यूनियन स्टेशन के सामने बस खड़े हो गए. क्या बात है. और उन्होंने ना अपनी ही ब्रांडेड की कोई ड्रिंक रखी हुई थी. सो जब उन्होंने न्यूज़पेपर दिया ना सबको, अब न्यूज़पेपर सच अ बिग थिंग कि आप उसको फेंक भी नहीं सकते, और उसको जो है अगर ले लिया तो आप साथ ही रखेंगे जब तक आप घर नहीं पहुंचते और गार्बेज में नहीं डालते. मतलब कि वो रिसाइकलिंग में जाएगा, बट आप खुले में नहीं फेंक Yeah. सकते उसको. अच्छा, वो इतना वेल डिज़ाइन न्यूज़पेपर्स में वो गेम्स वगैरह कि मुझे वो डॉन का न्यूज़पेपर याद आ गया. अब मैंने गेम्स खेलते थे उसमें. यहाँ हाँ. कनाडा में कभी न्यूज़पेपर देखा नहीं. अब वो टिम हॉर्टन्स वगैरह पे रखे होते हैं, बट आई हार्डली पे अटेंशन. अब दिस न्यूज़पेपर हैड ऑल द इंफॉर्मेशन, हाउ टू मेक वेल्थ, टॉप इनसाइट्स, टॉप ट्रेंड्स वगैरह. कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा भी. So it wasn't like going all crazy. It was just about, that nostalgia and, you bring that memory factor back. And that newspaper, like, I still have it. And I really like it because I was like, in this digital age, अगर आप कोई ऐसी चीज़ बनाओ, तो you kind of keep. And maybe that's one of the reasons why WellSimple is so big now in Yeah. Canada, right? Next one. If content creation paid you more than your marketing job, would you leave your job? So this is something I've thought about multiple times. सही है. But the responsibilities and impact that I can make from my job, it's beyond monetary value for me. And alhamdulillah, I can say that I'm at a stage ke money does not interest me that much as it did before, but the impact that I can make and doing something in my field and with the autonomy that I have, वो मुझे, like, I've thought about it and I've seen my friends who do it full time, उनका routine बहुत out है. There are perks that you can travel वगैरह, पाकिस्तान में कभी भी चले जाओ, but I like the routine and the network I can make with my full time. Amazing. एक लास्ट सवाल है एक्चुअली. अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर टोरंटो क्यों सेटल हो गए भाई? देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट ग्रोथ. ठीक है. कराची में
I did not know कि there's a life beyond this. सही. ठीक है, कराची में I was stealing, you think this is the end. As soon as you move to UK, US, Canada, Yeah. आपको लगता है कि आप तो बेसमेंट में थे सही. और स्टीलिंग तो अभी CN टावर की छत पे. there's so much to do, so much growth, so many new things to do. कराची में तो you can't do all these things as well. So I mean कराची की life is good, but it's comfortable, and then you always have to be outside that zone. चले, amazing. Yeah. एक quick rapid fire आपके लिए, since you have a background in marketing, content creator, lived in Karachi, moved to Canada. तो इसके हिसाब से मेरे पास I think 7-8 मेरे पास rapid fire questions हैं. Cool. So quick answers होंगे मुस्तफा. मसाला फ्राइज या loaded fries? Five Guys के मसाला फ्राइज. Five Guys के मसाला फ्राइज. पाकिस्तान में बेस्ट फ्राइज कहाँ में हो? कराची में कहाँ मिलते हैं? ठेले वाले के पास. और Okay. पेट भी साथ में खराब होता है. बिरयानी वर्सेस निहारी. बिरयानी. कराची किंग्स या लाहौर कलंदर? No way, Lahore Karachi Kings, of course, even though we lose all the time. But you're Karachi Kings. Okay. Yeah. No electricity or no gas? Electricity, Wi-Fi चले गया तो मेरी जिंदगी खत्म. No internet or no water? ये टफ है. रोजा तो इतने रख लिए मैंने. इंटरनेट चाहिए. वॉशरूम भी जाना होता है कभी-कभी. वो पहले से लोड कर लो. Canadian winter या कराची summer? I enjoy Canadian winter. Okay. Yeah. कराची monsoon या Toronto snowstorm? Toronto snowstorm भाई. Full jacket पहन के घूमो. Facebook या Instagram? Snapchat. Streaks. Instagram ले लो. Snapchat या TikTok? TikTok I don't like that much, to be honest. I like Snapchat. Snapchat is more personalized. It's the only platform that is just personalized. Okay, interesting. Last है कराची चाय या Toronto coffee? Yeah, right. ये कराची कॉफी बिकॉज कराची में भी हर अगले हफ्ते कोई कॉफी शॉप खुल रही है. बट जो मज़ा सुबह टिम हॉर्टन्स की डबल में ना, वो सुबह डबल लैपटॉप खोला, इतनी ज़्यादा ईमेल्स ऑफ आई एम टू यूज्ड टू दैट नाउ. सही नहीं बट चलो अमेजिंग. आप पास हो गए. आई मीन कोई राइट और रॉन्ग तो था नहीं इसमें. बट मुस्तफा थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. बहुत अच्छा लगा. ग्रेट इनसाइट्स. मार्केटिंग ग्रू, क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट. बहुत ही अच्छी जर्नी फ्रॉम कराची टू टोरंटो. This is just the start. अभी और भी बहुत कुछ करना है. Inshallah, and I hope that we have a round 2 and you have much more to share. So Inshallah. thank you very much, Mustafa. Thank you so much for coming. And for the audience, I hope everyone liked the conversation. Please subscribe and मेरा stay tuned गला for the खराब था by the way. stay tuned for the next podcast.